Today we're going to talk about how communities are involved in conserving and protecting their common land under community forest right in uh, foothills of Melghat Tiger Reserve in Amravati district of Maharashtra. And today our speakers are Mr. Ramlal from Paivihir Gram Sabha. He was also part of Coexistence Consortium cohort last year. And then we have Advocate Purnima Upadhyay with us, who is uh, who is also founder of organization working in Melghat for last 30 years with the communities here in Melghat. So I would like to hand over the session to Advocate Purnima Upadhyay, and I would like her to share us how this journey has shaped the land, the community, and the whole perspective of conservation and regeneration here in Melghat. Thank you, Aditi, and uh, thanks for having us here. And I think this is almost now 20 years of the Forest Rights Act that the act has been in practice. And what we're going to see today basically is an example of what the community forest rights under the Forest Rights Act can achieve when implemented on the ground with the local communities, the local indigenous scheduled tribes, and also the other traditional forest dwellers in these areas. This is a story about the work that the Gram Sabhas have been able to do in the span of last 15 odd years that the rights were recognized. And this is also a story of the potential uh, of how laws can basically turn rights into resources for communities if implemented with that perspective. The story of Paivihir is just an example of a story of cluster of villages at the foothills of Melghat Tiger Reserve, uh, where communities have come together and have engaged with the law of Forest Rights Act as well as Manrega, and have been able to transform their landscape in this period. It is also heartening for us to see the change because uh, what really happens is the FRA is always unknown for the individual forest rights, but the aspect of community forest rights, which basically largely shapes the a big chunk of the Forest Rights Act processes, is never talked about. So I think today we have with us Ramlal, who is a member of Gram Sabha of Paivihir. He will narrate the experience of Paivir. But just to add that while we are talking about Paivir, this is not just a story of Paivir. This is of a cluster of 5 villages which share a landscape of around 1,200 hectares of forest land, and they have all worked together in this process, and the processes are similar for almost all the villages in that region. So we will hear from Ramlal. And I think what Ramlal also talks today is a demonstration of what community forest rights can basically achieve, both for conservation, for livelihoods, and for improving governance of the villages, which stay inside the forest areas or on periphery of the forest areas. This is a story of ecological restoration, and I think we are happy to share this with the large ERA community. So thank you. I would just invite Ramlal to start with his presentation, and I'll try and briefly translate what he says into English. Thank you, Ramlal. आप शुरू जी कर सकते हैं. जी साथियों नमस्ते। मैं रामलाल हूँ और कोरकू ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, जो महाराष्ट्र के मेड़घाट टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ लगभग कोरकू ट्राइब की मेजोरिटी ज्यादा है। और मैं पाईवीर गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो पाईवीर गांव ये एक बफर और कोर के बाहर के एरिया में बसता है। और हम बात करना शुरू करते हैं तो पाईवीर, जब हम लोगों ने 2008-9 में काम शुरू किया था, या गांव में हम वापस आए थे एक युवा करके,
तो गांव का चित्र हमको बहुत अजीब सा लगा। वो ये चित्र ऐसा था कि लोग माइग्रेट करते थे, 12 महीने माइग्रेट करते थे, सीजन के लिए सिर्फ वापस आते थे। जैसे बारिश शुरू हो गया तो वापस आ गए, फिर बारिश की खेती कर लिए, फिर चले गए दशहरे के समय, फिर दिवाली आ गए तो वापस आ गए, फिर दिवाली खत्म होने के बाद फिर काम पर गए तो होली में वापस आ गए, फिर होली खत्म हुआ तो फिर चले गए तो फिर बारिश में। तो ये एक पूरा चक्र जो पाईवीर और मेड़घाट में अन्य सारे गांव में ऐसा चक्र चल रही था। तो हमें वो एक अजीब सा लगा कि यार हम अब गांव में आए हैं, गांव में भले ही हम थोड़े पढ़े लिखे थे, 11वीं 12वीं था, कोई 10वीं था, और सब फेल और ऐसे कुछ करके वापस आए हुए हम युवा थे। तो शहर को हमने थोड़ा देखा था, वहाँ का जीवन में को भी हमने देखा था। तो जब गांव में वापस आए तो हमें वो बहुत विचित्र लगा कि नहीं, हम इसको बदलने की जरूरत है। तो वही चीजों के ऊपर फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। ब्रीफली रामलाल की बात को I'll just translate it कि रामलाल basically belongs to the Gram Sabha of Paivir, and Paivir lies outside the tiger reserve, basically outside the buffer and the core of the tiger reserve, just on the boundaries. And as youths, when they were studying in the town of Paratwada, just at the foothills, and when they came back to the village, they saw that the situation was not really very heartening, because people used to migrate for large chunk of the year, and they used to come back for festivals. They used to come back for Holi, Diwali, and for other part of the year, they used to migrate in search of employment. And this was largely the situation in a lot of villages across Melghat. Ramlal. जी। तो वही की स्थिति हमारी पाईवीर की यही थी, जो आप देख पा रहे हैं कि गांव हमारा एक छोटा सा गांव है जहां कोरकू जनजातियों की संख्या काफी ज्यादा है, और साथ में ऐसे समुदाय भी भले ही समाज करके कई वर्षों से जंगलों में रहते आए हैं। नेक्स्ट। So this is a village basically of largely of the Korku community, and also inhabited by a few Balai families who belong to the scheduled caste. So it's a mixed village, not really a homogeneous community. तो हमें ऐसा पता चला कि यार आदिवासी वन अधिकार कानून आया है, जिसमें जंगलों में रहने वाले गांव को समुदाय का जंगलों पे अधिकार मिलता है। तो ये कानून की जानकारी हमें खोज के माध्यम से मिली। तो हमें लगा कि यार ये हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए और इसको अप्लाई करना चाहिए। तो फॉरेस्ट राइट के ऊपर लोग एकत्रित आए और चर्चा किए। तो उसका एक ऐसा हुआ कि हम जब बुजुर्गों को कानून के बारे में बताया, जिनको कहा कि ये देखो ऐसा कानून है जिसमें हमें जंगलों पे अधिकार मिलता है, चराई का अधिकार मिलता है, हमको जंगलों से बहुत सारे गौण उपज लाने का अधिकार मिलता है, वो लगभग मैनेजमेंट करने का अधिकार मिलता है। तो कुछ समय के लिए तो बुजुर्ग लोग बिल्कुल हम पे विश्वास नहीं किए कि अरे ये गांव के लड़के शहर में जाके क्या पढ़ाई करके आए, कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, और ऐसा कोई कानून थोड़ी होता है। हम तो चराने जाते हैं ढोर को लेकर तो फॉरेस्ट पकड़ लेती है, हम एक आधी घर के लिए कोई लकड़ी लाते हैं तो फॉरेस्ट हमें पकड़ लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि आपको पूरा जंगल आपको मिलेगा। तो ये कुछ तो गलत इन्होंने किया है, या गलत कानून इन्होंने पढ़कर आया है। तो ये सारे बातें हमारे बुजुर्गों के साथ डिस्कशन हुआ। फाइनली ये हुआ कि कुछ बुजुर्गों ने माना कि चलो ठीक है, लड़का उन कह रहे हैं कि ऐसा कानून आया है, इनको आप समझने में समय लगेगा, अपने को तो पता है कि फॉरेस्ट क्या करती है, एक बार इनको अनुभव के लिए इनका सुन लेते हैं, और फिर निर्णय लिए कि फॉरेस्ट एक्ट के तहत में अप्लाई हम करेंगे। जी तय। So this is basically the story about the initial discussions at the community level, where the youth came back and started talking about the Forest Rights Act, and they talked about various provisions of the Forest Rights Act that basically empowered the communities with right over minor forest produce, right over grazing land, right over worshipping their traditional places of worship, and a lot of other rights basically. However, the elderly in the village were not really convinced that there could be such kind of a provision or a law, because what they had experienced was the traditional style of forest management under the forest department, where basically they were not even allowed to take the cattle inside the forest areas for grazing. So the elderly were not really in sync with what the youth were thinking. However, because the youth were really very persistent, the elderly then said, okay, let's begin with the discussion and let's see what happens. So this is how we started. तो हमें लगा कि यार जंगल है हमारे आसपास होगा तो हम चलते हैं, क्योंकि हमने बचपन से थोड़ा सा जंगल तक नहीं पहुंचे, हम पढ़ाई करने में थे हमारी पूरी यूथ। वापस हमने जंगल के ओर झांक कर देखा तो पता चला पूरा बैरन लैंड है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका। फिर हमें शंका हो गया कि यार हम अधिकार ले कैसे,
मांगे कैसे, क्योंकि यहाँ ग्रास चाहिए, यहाँ पेड़ पौधे चाहिए, तो हम यहाँ का अधिकार अपने आजीविका के लिए, हम गौण उपज अपने आजीविका के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें, जब हम जंगल की ओर मुड़कर देखा तो एक ये नज़ारा था। लेकिन हमें वो नज़ारा ऐसी खटकी कि यार ये खत्म हो चुका है और आने वाले समय में हम यहाँ जीने वाले हैं। तो हमारे लिए ये रहना मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत है। तो ये बात के ऊपर हम लोगों ने काफी फिर चर्चाएं शुरू की। प्लीज। So the youths, when basically they started working on the process of filing the community forest rights claim, they came back to the forest. Till now, a lot of them were also studying in the town. But when they came back to the forest, they really saw the area that they were trying to claim. And then the whole question was, if we are trying to claim this area, what do we do with this kind of an area? Because there was basically nothing much left in this area. And this was a big question that actually was staring at the face of the youth, and they had to discuss this and do something about it. जी, इसके ऊपर फिर समुदाय चर्चाएं करना शुरू किए। हमने रेगुलर बुजुर्गों के साथ बैठना शुरू किया कि भाई ये कैसे हुआ, क्या ये हमारे लिए सही है। हम इसको बार बार इसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू किए और बुजुर्गों के साथ इसके ऊपर किया कि नहीं, हमें ये करना चाहिए, नहीं तो हमारा नेक्स्ट पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहेगा, हमारा कल्चर नष्ट हो सकता है, हमारा बहुत सारे बातें हम दूर हो सकते हैं। तो इसके ऊपर बुजुर्गों के साथ हम बहुत गंभीरता से चर्चा की। उसके अलग अलग रीजन थे खत्म होने के, लेकिन फाइनली हमको आगे जाना था कि चलो हम इसको फिर से रीजनरेट करने का काम शुरुआत करेंगे। So a lot of meetings happened with the village Gram Sabha, especially with the elderly, to think about the reasons of why this happened. And there were multiple reasons, but rather than just getting into the reasons, the whole question was of looking ahead with the community forest rights claim and to see what we could really do next. And hence a lot of discussions and Gram Sabha meetings basically started happening. They were also wondering whether with the loss of the forest, it would also lead to the loss of the culture and traditions, which was already dwindling. And so the young people thought that no, we should start working on protecting the forest areas and thinking through how we would be able to do this. तो हम लोग फिर एक्सपर्ट के साथ जंगलों का देखना शुरू किया। एक्सपर्ट को हमने हमारे जंगलों को दिखाया कि क्या हम इसको बेहतर बना सकते हैं, क्या हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने अलग अलग बहुत अच्छे लोग भी मिले हमें, जिसमें हिंगनेकर जी थे, खोज थे, ऐसे अलग अलग लोगों को हम लोगों ने यूथ के साथ एक्सपर्ट की हम लोगों ने ये की। जी। So the community basically started talking about and exploring what do we do with these areas. And then we spoke to a lot of people who were even within the government department. So there were good people within the department who were sensitive and who wanted to stand with the communities and support the communities. So we sought their help, and taking their help, we understood what measures we could do. We also sought the help of Coach, and together we all explored what really could be taken forward. Yes. नेक्स्ट। और फाइनली हम लोगों ने ये तय किया कि अब हमें हमारे जंगल को खड़ा करने के लिए हमें फॉरेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या है ना कि जब हम बुजुर्गों के साथ कहे कि हम फॉरेस्ट के साथ बात करने वाले, तो हमारा फिर से पुराने बुजुर्गों का यही कहना है, अच्छा फॉरेस्ट के साथ बात करने, अरे यार इनके साथ मत बात करो, ये कहीं ना कहीं हमें मदद करने के इसमें नहीं चाहते हैं। तो ये चित्र आपको दिला देता हूँ मैं आप सभी को कि ये पिक्चर्स हमारे लगभग 2010 और 11 के बीच का पिक्चर्स है। और पहली बार पाईवीर ग्राम सभा फॉरेस्ट के साथ कनेक्ट होने जा रहे थे। तो हमने खोज के माध्यम से फॉरेस्ट की तरफ एक खबर भेजी कि हमें आपसे बात करनी है और आगे हमारे जंगल को हमको खड़ा करना है। और हमारा एक तरफ हमने क्लेम दाखिल कर दिया है, एक तरफ हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया है, लेकिन हम तुरंत काम पे लगे थे कि हमें आप काम पे जाना है क्योंकि हमें बहुत सारे काम करना है। तो फॉरेस्ट को हमने रिक्वेस्ट की, तो खबर थी थोड़ा, मैं और आपको 1 मिनट लूंगा, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी थी उस समय की। तो गांव में हम लोग खबर आया है कि खोज के तरफ से पुण्यमताई ने हमको बताया कि भाई आपके फलाना दिन वन विभाग के लोग आपके गांव में आने वाले हैं। तो हमने बुजुर्गों को कहा कि भाई आज फॉरेस्ट के लोग आने वाले हैं,
तो हम सबको गांव में रुकना चाहिए, गांव स्वच्छ रखना चाहिए। तो वन विभाग के लोग आएंगे अपने गांव में, तो गांव के लोग बुजुर्ग करे, अरे वन विभाग के लोग कहाँ आते, यहाँ अपने गांव में महीनों महीनों तक ग्राम सेवक नहीं आता है, महीनों महीनों तक पटवारी तलाठी नहीं आता है, और आप कह रहे हैं कि जिले के या तालुक के स्तर के फॉरेस्ट के लोग आएंगे। नहीं हो सकता है ऐसा। और वो भी गांव के जो तुरंत, और मुझे लगता है हम लोगों का, मैं अभी रिमाइंड कर देता हूँ कि उस समय हमारा एज लगभग 22-23 साल के रहे होंगे हम 2010 के करीब में। तो उस समय हम ऐसे यंग थे, और हमारे ऊपर बहुत सारे कम्युनिटी के गांव के लोगों का भी इतना बहुत सारा विश्वास था नहीं तब। तो फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है कर रहे तो रुक जाते, तो गांव में रुके रहे, सूचना दी गई कि आज साहेब आने वाले, रखा। तो हमने गांव में चेयर जमा किए, खुर्चियां जमा की, साहेब आएंगे। तो उस समय आपको बता दूं, सिर्फ 4 खुर्ची निकली थी पूरे गांव में, सिर्फ 4। आप सभी लोग सुनने वाले को याद देता हूं कि 4 खुर्ची, ध्यान में रखना, पाईवीर के पास लोगों को, अधिकारियों को बैठने के लिए चेयर भी नहीं थे, सिर्फ 4 खुर्ची मिली थी, और वो भी नॉन ट्राइब के परिवार में ही एक एक खुर्ची थी, उसको जमा किया। फाइनली 10, साढ़े 10, 11 बज गए। लोग बोले अरे आते नहीं, ये खामा खाम लड़के उन कुछ का कुछ ही बोल रहे हैं, ऐसा अधिकारी नहीं आते, ये भी लड़कों के कहने से। तो हमको लगा यार सच बात है, अधिकारी कहाँ आते हैं, और शायद हम ही गलत है। तो फिर हमने कॉल लगाया, पूछा कोच को कि भाई क्या अधिकारी आने वाले नहीं आने वाले। तो ताई ने कहा कि भाई हम एक बार चेक कर लेते हैं आने वाले कि नहीं, एक बार वो तो कहा है आने का। तो वो काम पे लगे, मतलब कॉल करने लगे, हम वेट करने लगे। फिर ताई का कॉल आया कि कहा कि भाई वो तो अमरावती से निकल गए, आपके यहाँ 1-1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो फिर हम सब लोग कॉल का वेट ही कर रहे थे, तो पता चला अरे हाँ आने वाला है, कॉन्फिडेंस हमारा फिर लेवल बढ़ गया। फिर सारे लोग अपने अपने तैयारी में थे। जब वो पहली बार गांव में आया तो वो बहुत अलग चित्र था, और जो वन विभाग था और जो कम्युनिटी था, वो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग था वो बहुत अलग था। उस समय मुझे याद है 2010-11 के बीच में लैंप वाली प्रथा थी, आरएफओ को भी लैंप होती थी, डीएफओ को तो होता ही था, बहुत सारे अधिकारियों को लैंप होती थी। तो 14 गाड़ी हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम, पहली बार इतिहास में लैंप वाली गाड़ी आई थी। तो वो एक बहुत बड़ा चित्र था, और बुजुर्ग लोग युवा के प्रति बहुत उत्साहित थे कि नहीं यार गांव के लड़के कुछ तो बेहतर कर, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी अपने गांव तक आना, ये कहीं ना कहीं गलत लड़के नहीं है, सही है, ये कुछ तो बेहतर कर सकते हैं। तो ये तुरंत हमारा ट्रस्ट बना जब लोगों उनके साथ, उस समय सीसीएफ चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्टर थे मोहन झा सर, भले हमारे बीच अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो जब पहली बार पाईवीर आए तो लोगों के साथ बैठे। लोगों के साथ बैठने के बाद लोगों ने कहा कि यार वन विभाग तो ऐसा होता है, हमने जो वन विभाग को देखा है वो तो कुछ और ही था, लेकिन वन विभाग ऐसा होता है। और वन विभाग ने हमारे साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग की, आज भी हमारे साथ उनका बेहतर ताल्लुकात है, कम्युनिटी को, ग्राम सभा को बहुत अच्छे से संपर्क करते हैं। और उस समय वन विभाग ने हमको 3 चीजें बहुत महत्व कही थी। वो ये था कि आपके गांव सही में कुछ करना चाहता है तो 3 चीजें के ऊपर बहुत अमल करने की जरूरत है। एक तो आप ग्रेजिंग, जो चराई है उसका मैनेजमेंट आपने करना चाहिए, और जो कटाई होती है उसके ऊपर निरंतर रखना चाहिए, और जो फायर लगती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये 3 चीज करती है तो जंगल अपने पैर पे खुद खड़ा हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और आपके कम्युनिटी ने सीएफआर क्लेम दाखिल किया है, वो मिलेगा तब मिलेगा एज अ सीसीएफ करके आपको 15 हेक्टेयर जमीन अभी हम हायर करते हैं मेरे अथॉरिटी से, आप इसको ले लीजिए। तो ये इस तरह का उस समय किया, और वो बहुत बढ़िया बॉन्डिंग रहा और बहुत बढ़िया डिस्कस रहा। जी ताई सॉरी। Sorry, so I am not sure if I'll be able to do justice to the rigor of the discussion here. So this is basically the story of how the first interaction with the forest department happened, and basically when the youths looked at the entire forest area, they basically realized that they also probably could seek support of the forest department. And a first meeting was scheduled of the Gram Sabha with the forest department. However, a lot of people did not believe that such kind of meeting could ever happen because they had not seen a senior forest officer or even a DFO come and visit the village. So they were really skeptical about the whole thing. But the meeting basically happened, and this was around 2010, 2011. And when the community was basically trying to organize the meeting, they were trying to pull chairs for the officials. And in the entire village, there were merely 4 chairs that could be found basically. And with the 4 chairs and all the other people sitting on the ground, the meeting actually was organized.
And for a lot of time, people waited for the forest officials. They were not sure if they would come, but then they got a confirmation that yes, the forest officials were coming. And when the officials came, there were almost 14 vehicles that came with the red lamps. And this was also startling for the communities, because no one had ever come to this village. This is not a very remote village in Melghat. This is a village which is close to the town of Paratwara, but still not many people, officials, had ever visited the village. So this was the first time that the CCF, Mr. Mohan Jha, who was actually also, I mean, we friendly used to call him people's man in the forest department. And so he came with his team, and he came and had a discussion with the people, with the Gram Sabha. He tried to understand what the people were talking about, how they wanted to take the processes ahead. And he said that your claim will be decided in due course of time, but within my jurisdiction, I am giving you this 15 hectares of land, and you decide how you want to manage the land. And he merely said that follow the principles of no illicit felling, grazing management, no cutting. And this is how the initial discussions with the forest department happened. And there was also kind of bond that developed. So even while we were doing the work of community forest rights, we did not discard the forest department as a nuisance, or as someone who didn't have any values, because they still existed. Even though the rights were of the communities, the department was still there, the officials were still there. So we tried to see how we could work together wherever it was possible. And the forest department also joined hands, and even today they work together on many occasions, wherever possible. And with this, it was decided that we will take over the 15 hectares immediately, and while we look at the larger picture, we will start with this 15 hectares of land. So that's how they first, the management process of this land started. यस तो फाइनली इसके बाद तुरंत फिर हमारी ग्राम सभा बैठी और उन्होंने निर्णय किया कि भाई फॉरेस्ट ने हमें 15 हेक्टेयर दे दिया है और हम इसको मैनेजमेंट करना चाहिए। तो प्लान हुआ कि हम उसको ग्रेजिंग और फायर और कटाई से प्रोटेक्ट करेंगे, लकड़ी कटाई से बचाएंगे। तो कौन जाएगा, क्योंकि पहली बार जंगल बचाने का काम हम ग्राम सभा करने जा रहा, तो जाएगा कौन। तो जब बैठक निर्णय हुआ था, बैठक में चर्चा हुआ कि हम लोगों ने एक्चुअल, क्योंकि युवा करके तो घर की जिम्मेदारी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो पता चला कि बुजुर्ग होते हैं, जो बुजुर्ग लोगों ने जिम्मेदारी ली, उन्होंने कहा देखो हम तो घर में ही होते हैं, तो यहाँ बैठने की वजह हम जंगल जाके बैठते हैं, और कोई रहा तो हम आपको इत्तला करेंगे, खबर करेंगे कि यहाँ कोई लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उस समय के ये 3 बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत सुंदर जिम्मेदारी दी। आज वो हमारे यहाँ अब अलग अलग जिम्मेदारी लोग निभा रहे हैं और उसको कंटिन्यू निभा रहे हैं जी। So this is a picture of how the first processes began. And when the CCF actually talked about the 15 hectares, the question was who will go and monitor the 15 hectares, because a lot of people had to work for the families, search for the livelihoods, and youth were busy with that. So they realized that there were elderly people in the village, and the elderly said that rather than sitting in the village, we will go and sit in the forest. And if there is any issues, then we will try and send you a message, and then you can come and intervene. So this is how the picture of the first 3 elders who actually started going to the forest and started protecting the forest. This is the picture. One of the elderly is no more, but the whole processes that they have set in motion from that time even exist currently. So this is how the first steps began. Yes. तो मैक्रो प्लान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कुछ तो जमीन आ गया है। तो ग्राम सभा के साथ मिलकर, कोच के साथ एडवाइस लेकर गांव का एक मैपिंग किया कि आज हमारे पास कितने लोग हैं, कितने बड़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने महिला है, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने काम करने वाली फैमिली है, कितने फैमिली के पास खेती है। इसका पूरा एक मैक्रो प्लान बनाया गया है, उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। और गांव के लोग इसमें पूरी तरह से, आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लगभग बाहर का नहीं है। एक आपको इधर सफेद शर्ट में नीचे बैठा हुआ दिखेगा, वो कोच के महादेव बहू है। उसके अलावा पूरे पिक्चर्स में पूरे गांव के लोग हैं।
तो ये पूरी तरह गांव के लोगों ने प्लानिंग किया था कि आज हमारे पास क्या है और हमें कहाँ जाना है। जी ताई। So once we started working on the conservation and protection issues, then we also thought that we should understand what our village is like, what are the resources that we have in the village, what is the composition and demography of our village, and what is the need of the village. And to do this, a process of undertaking micro plans began. And the whole micro planning process was guided by Khoj, but was entirely done by the village community. And in this process, we understood what resources we had, what challenges we had, and how we had to take the processes ahead. So the process of micro plan, this is not the basically the JFM micro plan. This was a micro plan that the village community and the Gram Sabhas and Khoj together decided that we need to do a micro plan to understand. And this is how the first participatory planning of the village and of the forest began. यस। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जंगल में आज हमारे पास क्या है, और ये प्लानिंग के लिए हमारे यहाँ पूरे डिपार्टमेंट के लोग आए, जिसमें महसूल आया, ट्राइबल डिपार्टमेंट आया, इरिगेशन डिपार्टमेंट आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया, और इवन ये एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी बुलाया गया है, फिशरीज के लोग होते हैं उनको भी बुलाया गया। और आज के समय में हमारे जंगल में क्या है और कहाँ क्या पहले था, बुजुर्ग लोग, डिपार्टमेंट के लोग और कम्युनिटी और खोज, ऐसे लोग मिलकर पूरे जंगल का मैपिंग किया कि कहाँ पे आज के समय में कौन सी मिट्टी है, कहाँ पे नदी है, कहाँ के नदी में रोकना की जरूरत है पानी, कहाँ पेड़ लगा सकते हैं, कहाँ अभी पेड़ है, कौन सा पेड़ होंगे। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में सारे डिपार्टमेंट के लोग हमारे जंगलों का पूरा मैपिंग के लिए, रिसोर्स मैपिंग के लिए आए थे। So when we started with this process, we also engaged all the other departments who were aligned to this idea, and all of them came together. So it was not just looking at the forest, but it was also trying to look at the village as a whole. So there were people from irrigation department, there were people from forest department, from social forestry, from agriculture, from the animal husbandry, fisheries. All the people came together, and also the elderly and members of Khoj, all of us jointly basically understood what was the forest like before, what were interventions that were needed to do in different places across the area of Paivir, and how we could really take this forward. So this was an exercise which was done by the local people on the ground. These were all the local officials of various departments who came to the village, and we started exploring what all could be done here together. यस। और इसके बाद पूरा प्लानिंग होने के बाद पता चला है कि वजह से बारिश के पानी में यहाँ की मिट्टी बहुत तेजी से जा रही है। तो प्लान के मुताबिक ये हुआ कि पहले हम लोगों ने ग्रास प्लांट करना चाहिए। तो हम लोगों ने सुदान करके एक प्रजाति है जो गवत की सीड्स लाई, और जहाँ हम लोगों ने ट्रेंचेस खुदवाए थे वो ट्रेंचेस में हम लोगों ने ये प्लांट किया। तो पहली बार हम लोगों ने सब मिलकर ग्रास प्लांट किया पहला साल, और पता चला कि वो प्लान इतनी ज्वारी जैसे बढ़ रहे थे और बहुत सुंदर बड़ा था। बाद में धीरे धीरे लोकली प्रजाति बहुत तेजी से बढ़ी। बैक साइड के जो दो पिक्चर है हम लोगों ने वो सुदान प्रजाति करके गवत है वो प्लांट किया था, और फ्रंट में जो पिक्चर्स है जिसमें लोग दिखाई दे रहे हैं वो हमारे लोकल प्रजाति बाद में ऑटोमेटिक हुआ। तो ये ग्रास प्लांट शुरुआती तौर पर मैक्रो प्लान के मुताबिक हम पहला स्टेप आगे बढ़े। So as a first step, what was done was soil moisture conservation works were taken in the village. So trenches were dug in the forest areas, and while the trenches were dug, there was also grass that was planted on the bunds of the trenches. And the first grass that was also planted was Sudan grass that we can see in the picture behind. And the picture in the front where the community members are there, that's the local native species that actually grew later on. So this is how it was during the first year after the trenches and after the grass was planted. The entire situation in the forest area basically started changing, and the whole geography also changed remarkably. और उसके बाद फिर अब पता चला कि हमारे पास ग्रास हो गया, सब कुछ हो गया, अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया वहाँ, क्योंकि ग्रास देखकर वहाँ चराने वाले लोग ज्यादा बढ़े। तो ये मेंढरे लोग हैं जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे जंगल में उस दौर पर आया था। तो हमारी ग्राम सभा ने इनके साथ बैठकर एक बैठक लगाई, जिस बैठक में ये उनसे रिक्वेस्ट की कि देखो यहाँ तो अब कुछ भी नहीं है,
यहाँ तो अभी मट्टी पहले बचानी है, उसके बाद जो भी जीव जंतु बढ़ेंगे या पेड़ पौधे बढ़ेंगे, ग्रास बढ़ेंगे, तब के आगे का है। लेकिन अभी इसको शुरू से करना है, तो इनको रिक्वेस्ट की कि आप फिलहाल के लिए या अभी यहाँ ना आए। तो इन्होंने भी बहुत ग्राम सभा में रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की। ठीक है, हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ग्राम सभा आप अच्छा ही कर रही है। लेकिन ऐसा है कि हम, आपने आज कहा और हम कल नहीं जा सकते। हमें यहाँ से वहाँ माइग्रेट होने के लिए एक समय लगता है और वहाँ सब देखना होता है। तो उन्होंने ग्राम सभा को 7 दिन का मौका या रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें 7 दिन तक यहाँ मौका दो, हम 7 दिन के बाद चले जाएंगे। तो ग्राम सभा ने उसको तुरंत कहा कि ठीक है, वो भी अपने जैसे लोग हैं, 7 दिन का मौका दिया और 7 दिन के बाद वो चले गए। फाइनली लगभग 8-9 साल तक, 10 साल तक तो नहीं आए, वो गए 2 साल से अभी हमारे जंगल के बाहर अलग अलग जगह पे बैठ रहे हैं और वो वहाँ कुछ तो विचराते हैं। अब हमारे ग्राम सभा को तो बहुत अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, तो उसमें वो कभी आते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे ग्राम सभाओं के अनुसार दंड की जाती है। जी ताई। So when basically grass started growing, so also the animals basically started, the cattle and started coming into the area because now the land was much greener. And when the animals came into the area for grazing, then the Gram Sabha also, by this time the Gram Sabhas were also framing their own rules. So the Gram Sabha basically requested, the first step initially always was to request the members whoever was intruding into these areas to try and tell them what we were doing and to explain to them that we were trying to protect our area and to regenerate the forest in this area with a lot of effort. So people basically requested the shepherds who were grazing their animals here to abide by the rules of the Gram Sabhas and allow the grasses to grow. So the shepherds also understood what the community was saying, and they sought some time of a week to move from this area to another area, identify another area and to move there, and the community agreed. And they've almost for 8-9 years they have not come back to this area. For the last 2 years, we see that the shepherds are basically sitting on the periphery of the boundaries of Paivir, Upatkheda, Nayakheda villages, and they graze their animals in those areas. यस। तो बेसिकली इसके बाद फिर हमारे यहाँ जो हम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारे एक साइट में क्लेम दाखिल था और फाइनली 8 जून 2012 को, थोड़ा सा बैक लेते हैं, 8 जून 2012 को हमारी ग्राम सभा को टाइटल मिला। और वो टाइटल मिलने के बाद ग्राम सभा इतने खुश रहा, क्योंकि आखिर में 192 हेक्टेयर मिला हमें। और हमारे यहाँ गढ़चिरौली के बाद पहली बार ही हमारे यहाँ के आसपास के गांव में लगभग 7,000 हेक्टेयर के करीब करीब टाइटल सभी गांव को मिले थे। तो हम सब लोग, उस समय के परवीन परदेशी सर फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, उस समय के कलेक्टर, एमएलए वगैरह लोकली और समुदाय के लोग इसको टाइटल को लेने गए। और टाइटल मिलने के बाद नेक्स्ट ताई। So it was on 7 June 2012 that the community forest rights was recognized for the village of Paivir and a few other villages, around 7 other villages totaling an area of around 7,000 hectares. And this was a moment of victory for the effort that was being done by the Gram Sabha, especially the young people, because they continuously pursued this whole process. And the rights were recognized. And I think after Gadchiroli, because I think in Gadchiroli a lot of rights were being recognized, but outside Gadchiroli, across Maharashtra, claims were being filed, but no rights was recognized. So this was one of the villages where the recognition process basically began. Also because the forest secretary had visited these areas and the community convinced them why the community forest rights need to be recognized. So this was a process. All the dignitaries participated in the process of recognition of rights. The members of the communities participated. The elderly people participated in the recognition of rights. And we could see the collector, the local MLA, the forest secretary. So while across the country, this I would like to add from my side, that while from across the country, we blame forest department for actually being a problem in recognition of rights. In Maharashtra, it was a different story. We had the forest department which actually supported recognition of rights across Maharashtra, not just Melghat. It began with Melghat, but then it moved to Vidarbha, it moved to
other parts of Maharashtra, Thane, Raigad, Jalgaon, and other places where rights were recognized. So this was the forest department was also at the forefront of the process of recognition of rights in Maharashtra. और इसके बाद मिलने के बाद लोग बहुत खुश थे, क्योंकि लोगों को अब ऐसा लग रहा था कि यार ये जो चीज के ऊपर बुजुर्ग कह रहे थे कि नहीं मिलेगा और ये अब मिल गया है, तो ये अपनापन है, क्योंकि जमीन के साथ अब सीधा हमारा युवाओं का एक रिश्ता बना। और हमने फाइनली कहा कि यार अब हम किसी को ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि यहाँ कुछ करना है वहां कुछ करना है, पहले हम कुछ करते हैं। तो हमने तुरंत ही उस समय 2008 जून में ही हम लोगों ने श्रमदान काम किया था, जिसमें 2000 पीट्स हमने गड्ढे खोदे और उसमें बाम्बू प्लांट किया था। और बहुत हैप्पी थे लोग, क्योंकि आखिर आप चित्र में देख सकते हैं कि लोग अपने धुन में प्लांटेशन कर रहे हैं। मतलब कोई पता नहीं कि कोई कहा है करके कर रहे हैं, किसने बताया है करके कर रहे हैं, नॉट, मतलब लोग अपने ही इसमें था, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुशी का समय मौका था हमारे लिए। जी। So the process of recognition of rights actually boosted the confidence of the community, especially the young people, because this was a process which was led by youths and supported by the elderly in the community. So when the rights were recognized, all of us sat together and basically thought, what should we do to keep the memory of the recognition of rights? And it was collectively decided that we will dig 2,000 pits. And all the community members together came together and dug 2,000 pits voluntarily. And plantation in these 2,000 pits was undertaken. Saplings was brought from the forest department, and bamboo plantation and some other local species were planted in these 2,000 pits. And this was a moment of great pride and great joy. And all of us, all the people were basically engaged in this, in the work together. और इसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब कमेटी का सबसे अलग ये है कि क्या होता है कि आप सब लोग कम्युनिटी को जानते हैं कि कम्युनिटी के स्तर पर, गांव के स्तर पे बहुत सारे कमेटी बनी है, एक ही विषय को लेकर इतने सारे कमेटी बनी है। तो एफआरए में सेक्शन 41E की कमेटी गठित करना है तो ही आप आगे काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये कमेटी जब बनाते समय हम लोगों ने ध्यान में रखा कि हम सारे कमेटियों का एक मर्ज करेंगे, जैसे कि एफआरए की कमेटी, जेएफएम की कमेटी, ये जो महाराष्ट्र में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी करके फॉरेस्ट चलाती है, और बायोडाइवर्सिटी कमेटी। तो ये सारे कमेटी को हमने मर्ज किया है। सारे कमेटी की बॉडी वही लोग रहेंगे और उसके अध्यक्ष एक ही होगा, क्योंकि फाइनली ये तीनों कमेटी का काम जंगलों पे ही काम करना है, जंगलों का ही व्यवस्थापन करना है। तो अलग अलग क्यों करें? तो हम लोग वहां, और हमारे पहले जब ये हम कमेटी बना रहे थे उसके पहले जेएफएम ने अपना कमेटी ऑलरेडी उनके स्तर पे उनके पद्धति से बना के रखा था। तो हमने उसको तुरंत खारिज किया कि भाई आज हम ग्राम सभा के लोग बैठे हैं और यहाँ अब हमारी नई कमेटी गठित हो रही है, उसको जेएफएम भी कहेंगे और उसको एफआरए की भी कमेटी कहेंगे और उसको बायोडाइवर्सिटी की भी कमेटी कहेंगे। तो इस तरह का हम लोगों ने शायद देश में पहले ही पहल किया था ताकि हमको आगे काम करने में बेहतर हो। जी। So the execution process of FRA basically began with the formation of the Community Forest Rights Management Committee, which is empowered under Section 41E of the Forest Rights Act. And in that whole process, we also recognized that there were other committees at the village level, which was the JFM committee, the Biodiversity Act committee, and all these committees. The purpose of all the three committees was basically to manage the community forest rights area. However, they all existed in silos. So what we basically thought was that the Gram Sabha was now meeting, and the Gram Sabha decided that all the members of these committees would be selected by the Gram Sabha, and there would be one committee which would represent which would be representing in all the three steps, both in FRA, JFM and BDA. There would be just one set of people who would be represented by the Gram, who would be chosen by the Gram Sabha and who would represent Gram Sabha in all the three committees. So this was the convergence of committees at the village level, and all the committees the Gram Sabha decided, and it was basically the power, because all the three provisions, the Forest Rights Act, JFM and Biological Diversity Act, all empowered the Gram Sabhas to decide the committee. So the Gram Sabha decided that we will have one set of people, because ultimately all of them were supposed to manage the forest areas. All of them were supposed to serve one purpose. So there is one committee
and all the committees that were formed by the Forest Department, the JFM committee, which was formed earlier, was disbanded, and a new committee formed. All the records were brought to the level of the Gram Sabha, and all the records are even now maintained by the Gram Sabha at the village level. So even the JFM record. So no committee was disbanded. So we didn't disband JFM. There was also a purpose why the JFM was not disbanded, because if we needed funds for a lot of activities, and the JFM committees became one kind of a route for getting funds, because no one was willing to deposit funds into the community accounts. It was struggle. Now it is open that communities can operate their accounts and funds are coming to the community accounts. But 15 years before, it was not the case. So JFM became a channel for channelizing the Forest Department or any other government funds. Next. Yes. और इसके बाद फिर जब सरकार के साथ कम्युनिटी मिलकर काम कर रही है, तो सरकार का एक बहुत बड़ा हमारे साथ पार्टनरशिप रहा है, जिसमें कन्वर्जेंस प्रोसेस बहुत बेहतर चली हमारे यहाँ। और कन्वर्जेंस में हमारे जो आसपास जिनको CFR मिला था, जिसमें सरकार के सारे डिपार्टमेंट के लोग ताल्लुक के स्तर पर बैठकर हमारे यहाँ के छोटे छोटे मुद्दे, चाहे वो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे पंचायत से रिलेटेड हो, चाहे वो घरकुल के हो, तमाम सारे इसको लेकर एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप हमारे को गवर्नमेंट के साथ कन्वर्जेंस मिला, और मिलकर हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पे काम करने के नया पार्टनरशिप मिले हमें जी। So, under the FRA also, under the rules of 2012, there's a provision under section 16, which basically says that once the rights under whether IFR or whether CFR, once these rights are recognized, all the government departments should basically come together and support the communities for implementation and for management of their rights. How do we do this? No one knew. So this was also a time that the whole process of convergence was set into motion. And meetings with all the officials used to happen not just at the district level but also at the level of the village. So we can see the whole series of whole team of government officials, including our guardian secretary. Fortunately, our guardian secretary, Maharashtra has a process of establishing guardian secretary for each district. So our guardian secretary was also the forest secretary. So he came, he led the convergence processes on the ground. And he came along with all the officials, the district collector, the Jilla Panchayat CEO, all the irrigation department officials, the forest department officials, and village after village was visited, and then it was decided as to what were the processes that were needed to be undertaken in those villages. And the whole process used to be discussed with the community level and then followed ahead. So this was a new atmosphere that happened in the entire district. In fact, Amravati was leading the convergence process in the entire state. And a new partnership, new entry of various kinds of programs that were there of the government basically started coming to the village through the convergence committees at the district level. और इसके बाद फिर हम लोगों ने चाहा कि अब हमारे जंगलों में बहुत सारे काम करने की जरूरत नहीं, मैक्रो प्लान के मुताबिक। तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि क्या हम हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन के काम कर सकते हैं। तो पता चला कि हमारे पास तो इस तरह का कोई फंड नहीं है। तो उस समय हमें सबसे बेहतर फंड देने वाली यंत्रणा दिखी, तब वो था नरेगा। थोड़ा सा बैक लेते एक स्लाइड प्लीज। तो नरेगा एक ऐसा रहा क्योंकि एक तो लोगों को हमें जंगल को बेहतर करना भी है, और उसके साथ साथ हमें लोगों को काम भी दिलाना है और हमारे जंगल को डेवलप भी करना है। बैक का स्लाइड लगाते प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। इसके पीछे वाला स्लाइड नहीं, आगे जा रहा है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोगों ने ये सारा चीज के लिए पहले नरेगा के मदद ली। नहीं ठीक है, ओके, नरेगा की मदद ली, और जिसमें हम लोगों ने हमारे यहाँ के सारे यूथ ने एक बेहतर ट्रेनिंग ली डिपार्टमेंट से, और जिससे ये ट्रेनिंग ली कि हमें हमारे जंगल का वाटर लेवल कैसे बढ़ाना है और ये काम कैसे कर सकते। खाली हमने नरेगा को रिक्वेस्ट किया और वो आया और काम किया, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। हमारे यहाँ के 6 से 7 लड़कों ने लगभग लेवलिंग निकालने का पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग ली, और प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद फिर काम पे हमने जाना शुरू किया। और काम पे जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे पहले जंगलों में एक बड़ी सभा लगा जाती है, और वहां सभा में ये बताया जाता है कि इसका इतना बड़ा गहरा रहेगा, इतनी लंबाई रहेगी, इतने ये रहेगा, और इतने गड्ढा करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये सारा चीजें लोगों को अच्छे से बताया जाता है, और आप कम खोदते हैं तो आपको पैसा भी कम मिलेगा।
तो ये बताया जाता है, और कोई कुछ नहीं ज्यादा करेगा तो उसका मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा, वहां एक ठहराव करके ली जाती थी। और नतीजा ये है कि उसका काम पहले लेवलिंग करके कहाँ गड्ढे खोदना है, आप देख सकते हैं चित्र में कि हमारे सीसीटी इतने बेहतर होते गए। पहला पिक्चर पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ शायद अभी गवर्नमेंट के तो लोग नहीं होंगे, लेकिन पहला पिक्चर महाराष्ट्र में 2014 में सरकार नई आई थी, और उस समय एक उन्होंने योजना लॉन्च किया था, और ये पिक्चर्स हमारा 2014 के पहले का है। ये उन्होंने लॉन्च किया था जलयुक्त शिवार करके। तो उनको जलयुक्त शिवार में ये ही बताना था कि पानी अपने गांव के आसपास की जितनी भी जमीन पे पानी गिर रहा है उसको हमने वहीं पे रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। तो वो हम कैसे बताएं लोगों को, कैसे पिक्चर्स के माध्यम से? तो ये हमारा पिक्चर्स एम्बेसडर पिक्चर था, 32 फीट बाय 32 फीट के जिले में लॉन्चिंग के समय में ये पिक्चर उन्होंने यूज किया था। अच्छा, सीसीटी खोदना है, ट्रेंचेस खोदना है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एम्बेसडर फोटो था, जिले का गवर्नमेंट ने यूज किया था। और हमारे यहाँ ऐसे तमाम सारे लोगों को इससे एक ये हुआ कि मनरेगा के तहत काम भी मिल रहा है, लोग गांव में ही रुक रहे हैं, और गांव में ही रुककर लोगों को मजदूरी भी मिल रहे हैं। मैं आपको और इसमें एक थोड़ा मनरेगा पे चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रिसोर्सेस रहा ही है। तो लोग इसके पहले मनरेगा पे काम करने के लिए डरते थे, और ये बात मुझे याद है 2012 की करीब करीब की होगा, 12-13 की। तो लोग बोलते नहीं, मनरेगा का पेमेंट बहुत डिले होता है, वो सही नहीं होता है, और फिर हमको तो हफ्ते में बाजार करना होता है, वो कैसे हम कर पाएंगे? तो ऐसा लोगों की तरफ से कहना था। तो फिर हमने कहा कि लोग काम पे नहीं आ रहे हैं, तो काम पे नहीं जाएंगे तो हमारा जो बैरन लैंड है वहां को हम कैसे डेवलप करेंगे? तो फिर लोगों को कहा कि अपन पेमेंट दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि फाइनली कानून ऐसा कहता है मनरेगा का कि जिसमें जो आज के जीराम जी है उस समय कहते थे कि भाई 15 दिन के भीतर या 15 दिन के बाद आपको पेमेंट आ जाना चाहिए आपके पास, और नहीं आता है तो आपको भत्ता मिलना आवश्यकता है। ये कानून में हमने जानकारी देखी थी। तो फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये डिले क्यों होता है, क्यों मनरेगा के पेमेंट डिले होते हैं, उस समय की बात है। तो फिर हमको पता चला कि जब आज मजदूरी लोगों ने पिट्स खोदे हैं तो 7 दिन के बाद उसका मेजरमेंट ही होता नहीं है। मतलब आज मस्टर 7 दिन क्लोज हुआ है तो अगला 8 दिन तक उसका कोई मेजरमेंट नहीं लिया जाता। तो मेजरमेंट जब तक नहीं होगा तब तक वो एमबी नहीं बनेंगे, एमबी नहीं बनेगा तब तक वो डीडी करके ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर हमने फॉरेस्ट को रिक्वेस्ट करना शुरू किया, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है इसकी एमबी मेजरमेंट करने, उनको कॉल करना शुरू किया कि सर हमारे लोग बहुत काम किए मेहनत से, और आप जल्दी मेजरमेंट लेंगे तो पेमेंट जल्दी आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उनको बार बार कॉल करते करते फाइनली उनको लगा कि नहीं यार, लोग कॉल करते हैं तो हमें जाना चाहिए। वो आते हैं, फिर आकर फिर मेजरमेंट करते हैं। अब वो इतना बड़ा जंगल का मेजरमेंट करने को 8 दिन लगा देते हैं। तो क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हमको सब लिखना है, तो फिर हमने कहा सर क्या हम मदद कर सकते हैं हमारी ग्राम सभा की ओर से, कोई व्यक्ति आपको लिखने में मदद चाहिए? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई होगा तो बताओ। तो हमारे उस समय के कृष्णा भैया थे, जो उन्होंने उस समय ये सारे बातें मेजरमेंट कैसे करते हैं, एमबी कैसे करते हैं, वो सारा चीजों में वो खुद उनको मदद करते गया। फाइनली ये हुआ कि वो आरएफओ के टेबल पे जल्दी जाते गया, और ऐसा करते करते वो हमारे यहाँ 11वें दिन 9वें दिन पेमेंट आना शुरू हुआ। हमारे यहाँ मुझे याद है 2017-18 की बात है, या आई थिंक 17-18 की बात है। उस समय किरण गीते करके कलेक्टर थे, जो मेरे ख्याल से अभी नॉर्थ ईस्ट में कहीं तो भी बहुत बड़े पोस्ट पर है, मुझे पता नहीं, ताई बताएंगी। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में नरेगा के टाइम में ये कहा था कि हमने मेलघाट के पाईवीर जैसे गाँव में 9वें दिन पेमेंट हमने रिलीज किया है। मतलब इसके पीछे कि हमारे यहाँ के लोकल लोग, युवाओं ने हर जगह पे ट्रैक करना शुरू किया था। गार्ड को ट्रैक करना, वनपाल को ट्रैक करना, आरएफओ को फोन करके बताना। इवन यहाँ से होने के बाद जो वो फॉरेस्ट के बाद जो तहसील में जाता है यंत्रणा के पास, वहां पे बाबुओं के पास जो उनके अधिकारी होते हैं उनको बार बार बताना कि सर हमारा आपके पास एमबी आया है, आपके पास मस्टर आया है, आप मस्टर नंबर ये है, उसके इतने अमाउंट है। ऐसा करते करते हमारे यहाँ बहुत बेहतर तरीके से लोगों को पेमेंट मिलते गया, और एक बार काम शुरू हुआ तो साल भर ऐसा लगा कि पेमेंट डिले हो ही नहीं रहा। 15 दिन 8 दिन में एक कोई ना कोई मस्टर ऐसा कंटिन्यू चलते रहा। नतीजा ये हुआ कि लोग बाहर जाना, माइग्रेशन स्टॉप हो गए। शुरुआती तौर पर हमारे यहाँ भले ही हम कम लोगों को रोक पाए, लेकिन फाइनली हम 1-2 साल के बाद अचीव कर पाए कि हमारे यहाँ 100% माइग्रेशन स्टॉप, लोग बिल्कुल नहीं जाना शुरू किए। लोग तय करते थे कि काम बंद कब करना है। 12 महीने हमारे जंगलों में काम चलता था, अलग अलग सीजन के मुताबिक।
तो ये बहुत अलग अलग मनरेगा हमारे लिए वर्धक रहा। सॉरी ताई, ज्यादा हो गया, बताइए। Uh, so this is a story of how the whole process of transformation of the barren lands began. And the first thing was because when we were standing during the after the recognition of rights process, we realized that there was no soil, there was no moisture, there was no water in the land. So the first thing that was done was to begin the trenches. But the trenches would not begin just like that. Even before the trenches could be dug, there was an entire team of people, of young people from the village, who were trained by some of the very good officials from Social Forestry Department. They basically trained people in mapping the contours and in laying the contours for the trenches. And that's how these CCTs were dug. This is a picture, I think, of 2011-12, the first CCT that was dug in the area. And a lot of other water conservation measures that followed year by year. But while doing all these activities, or even before doing all these activities, when the rights was recognized, the big question was how do we find resources to do all this? And that's where we thought of Manrega, because while the Forest Rights Act gave us rights over the land, the Manrega gave us resources, and it gave us unlimited resources. No organization could basically support to this kind of transition. So the only resource that we had was Manrega, and we said that we will fight it out, but let's use Manrega, because that is what we can depend on. And then the estimates were made at that point in time. Estimates had to be made in collaboration with the Forest Department, because Gram Sabha had no rights. Today in Maharashtra, these individual Gram Sabhas which have been recognized, which have been granted to community forest rights, have also been recognized as an agency under Manrega. So that's another transformation that happened. But at that point, this was not the case. So we had to basically take support of the Forest Department. And Manrega became one of our biggest resources for converting rights and giving us more amount of money for doing all these kinds of activities. However, when we started working on Manrega, there was also a lot of inhibition, or rather, there was also problems that people confronted. And the problem was of getting money, because people needed money to go to the markets, do weekly markets, because all the villages in tribal areas basically go to the weekly markets and get their vegetables or whatever is required from the weekly markets. They won't buy for a month, or for a large number of things are not bought for the entire year. A few things are, of course, bought for the entire year. So they have to go to the market, and people needed money for the market. And these money from the wages was not coming through. So rather than giving up, we decided that we will follow up and explore what was the problem. So we realized that there was a bottleneck in terms of measurement. There was a bottleneck in terms of moving files. So at each step, the Gram Sabha decided to follow up once the muster was done at the village level. And even in the preparation of the muster, in the preparation of measurement, the Gram Sabha youths, the Rozgar Sevak, basically assisted the other officials who were doing the measurement, and ensured that all the things were done on time. The Gram Sabha followed up with each department, with each forest official, with the post office, which was giving money at that point, and ensured that every week there was a rotation of payment, and payment came to the people every week. One of the other factors that was followed was the measurement was really followed up by the village Gram Sabha members. Everyone was paid the amount of money for the work that they did. So there was no fraud, there was no forgery that happened in the work that was done in the villages. And that's why also we could see several amount of water, various kinds of watershed structures which were done under Manrega predominantly, and a few even under other schemes under convergence. I think one other thing that Ramlal talked about was that these structures, especially the CCT, this became a model for the Jalyuk Shivar program that was launched by the government in 2014. It was a flagship program of the new government of Maharashtra then, and the CCTs were put on big hoardings. And basically, it was also again a movement of pride for the people of Paivir, because they realized that the work they were doing was the kind of right work, the correct way of doing it, and people were not just getting money for the work, but now they were not migrating in search of employment,
and they were all staying in the village. They all got work in the village. They decided when they wanted to work, when they wanted to take leave. करेक्ट। और इसके बाद भी हमारे यहाँ धीरे धीरे पानी की लेवल इतनी बढ़ी कि बहुत सुंदर जगह आप देख रहे हैं कि हर जगह पे हम पानी को रोकने का प्रयत्न किए, जिसमें खोज के तरफ से भी इंडिविजुअली भी बहुत सारे काम किए गए, सरकार की तरफ से भी हुआ है, केएम की तरफ से भी, और हमने बहुत कम कॉस्ट में बेहतर डिजाइन बनाकर सरकार को हमने दी, और वो बेहतर इम्प्लीमेंट करने की भी एक यंत्रणा बना के दिया हमने सरकार की ओर से। हमने एक अच्छा मॉडल दिया था। एक आप सबको याद होगा, गैबियन बंधारा या सीमेंट बंधारे की कीमत लगभग 8-9-10 लाख के करीब करीब होती है, कहीं पे भी किसी को बांधनी होती हो। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने वो 2.5 लाख 3 लाख के अंदर हमने बनाया है। सरकार को बहुत डाउट हुआ कि नहीं ये गलत एस्टिमेट है, इतने कम कास्ट में बनता ही नहीं है। हमने कहा सर आपको सिर्फ एस्टिमेट हमारा मंजूर करिए और आप रिक्वेस्ट करिए कि वो पैसे हमारे पास दीजिए। आप आपके पास से उसका टेंडर ना करें, तो वो पैसा हमारे पास दीजिए, हम बेहतर तरीके से करके दिखाते हैं। और अभिजीत बांगर करके थे उस समय के कलेक्टर, उन्होंने उसको मंजूरी दी और फाइनली काम किया। और नतीजा ये हुआ कि हमारे सीमेंट बंधारे अभी जून महीना चल रहा है, और ये तो बहुत पुराने पिक्चर है, अभी पूरे डंप होके भरे हैं, ऐसे के ऐसे ही है, लाइव है। किसी को देखना है तो आप आके ऐसे का सेम चित्र आपको देखने को मिल सकता है। तो आज हमारे यहाँ पानी बेहतर हमने करके दिखाया है। नतीजा यह है कि हमारे गांव के 7 किलोमीटर पे एक पथरोड गांव है, जहाँ जांगड़ी लोग होते हैं। जांगड़ी लोग में हमारे समाज में मतलब कोरकू लोग, जो पढ़े लिखे लोग या जो शहरी लोग हैं, उनको जांगड़ी कहते हैं। वहां पे 2017 18 19 20 तक टैंकर से पानी आया था, जहां सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आपको सारे बड़े बड़े लोग हैं, फार्मर बड़े हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और हमारे यहाँ उस समय हर घर को नल ऑलरेडी कर चुके थे। अभी तो सरकार अभी मेरे ख्याल से 21 22 19 में लॉन्च किया था, और हमने 2016 में हर घर को नल हम लोगों ने दिया था, क्योंकि हमारे पास पानी भरपूर था। तो आज हमारे यहाँ की महिलाओं को पानी के लिए बहुत दर दर भटकना नहीं पड़ता है, 12 महीने बेहतर शुद्ध पानी मिलता है। थैंक यू। आगे। So, these are basically pictures of various works that have been done of water conservation under various programs. And you can see the board. The board basically points out to the cost of the cement plug that has been done here. And while normally the cost of a cement plug, whatever length and breadth, nowhere the cost is less than 9 to 10 lakhs. Here we dug a series of cement plug on this rivulet, and each costed somewhere around 2 lakhs, 2.5 lakhs. And even the collector and other officials were really wondering whether this is really true. And many officials, the collector, the divisional commissioner, came to the village to see how these works were done, and they were amazed with the kind of work this was done. These were works which was basically done by the department but monitored by the Gram Sabha. And the payments were done by the JFM committee. So till the time the works was done, till the time that they ensured that the quality of work was proper, no money was released. So the entire monitoring was done by the local committee and by the Gram Sabhas. So despite the fact the fund was parked with the forest department, without the permission of the JFM committees, no fund could be spent. And we can see the result of it. Even today, if anyone wants to come and see this, you can see the similar example live in the field today. रामलाल, हम समय भी देखें इसके थोड़ा। बाद एक्चुअली इसके बाद फिर हम लोगों ने अब हमारे और अलग रोजगार के ऊपर हम लोगों ने शुरू किया था, जो देश में शायद पहली बार हम लोगों ने तेंदू का व्यवस्थापन ग्राम सभा से करने जा रहे थे। और क्योंकि क्या है कि ये अब तक का फॉरेस्ट तेंदू बेचता था बीड़ी पत्ता के लिए, वो खुद करते थे, लेकिन अब ये अधिकार ग्राम सभा को आया है, तो ग्राम सभा ने खुद पहली बार शुरू किया था। तो हम लोगों ने 2013 में किया था, और आई थिंक मेरे ख्याल से मेड़घाट में 9 गांव ने हम लोगों ने 9 ही नहीं 2 ही गांव ने हमने शुरू किया था, उपातखेड़ा और पाईवीर ने। हमें काफी दिक्कतें आई हैं, और अलग अलग जगह पे हम लोगों ने गवर्नमेंट के टीडीसी आदिवासी विभाग के महामंडल का मदद भी ली गई है। और फाइनली अभी हमारा ऐसा है कि तेंदू का एक बहुत बड़ा ग्राम सभाओं का एक बहुत बड़ा महासंघ बनाया है, फेडरेशन बनाया है, और जो हर साल अलग अलग तेंदू को बहुत मैनेजमेंट करती है, जिसमें टेक्निकली खोज का मदद हमको मिलते रहता है। तो हमारा लास्ट ईयर का अभी अभी हम लोगों ने तेंदू का पूरा व्यवस्थापन किया है। जिस ग्राम सभाओं के पास 1 रुपया नहीं था, कुछ नहीं था, और माइनर प्रोड्यूस जो तेंदू पत्ता है, इसके आधार पर हमारा अभी इसी साल का लगभग 2 करोड़ 9 लाख रुपए का टर्नओवर हम लोगों ने किया है तेंदू का, जो लगभग 40 से 50 गांव के लोगों को डायरेक्ट
रॉयल्टी और बेनिफिट जा रहा है, और लोगों तय कर रहे हैं कि हमें कैसे मजदूरी लेना है, हमें कैसे बोनस लेना है, और हम कौन सा पत्ते कैसे करेंगे। जी। Not just the soil moisture conservation work, but we also started moving towards other parts of the rights under community forest rights. And one of them was the management of Tendu leaves, because Tendu was one thing that was there in the villages of Melghat and at the foothills of Melghat as well, in Paivir and other villages. And it was in 2013 that for the first time, I think there were around altogether 16 gram sabhas, of which Paivir and Upadkhela, 2 gram sabhas of Amravati district, collectively decided to manage their Tendu leaves. And this can be an independent story, an independent sharing of how this process began. But the management of Tendu became one more source of livelihoods for the local gram sabhas and for the local villagers. And from 2 villages in 2013, today there are more than 56 villages which have come together and formed the Federation of Gram Sabhas, and they manage their Tendu leaves on their own, decide how much money they want to pay as collection charges, how much money they want to pay as benefit from the process of management of Tendu, how much money goes into the management cost. All this is done by the Federation. We've just concluded the 2026 Tendu season, and the total turnover of around 56 Gram Sabhas was around 2.9 crores. And all this management is done with technical and legal support of course, but this is entirely done by the Federation of Gram Sabhas and by the village Gram Sabhas. So this is an independent process which is resulting from the implementation of the community forest rights. We can also see fisheries as one of the processes that have begun in with many other villages, where Gram Sabha is managing fishing rights in water bodies under FRA as well. इसके बाद हम लोगों ने प्लांटेशन की ओर बढ़े। हम लोग प्लांटेशन तुरंत करने को नहीं गए, आपने भी देखा है कि हम प्लांटेशन पे थोड़ा लोड लेट गए, और लगभग हर साल हम प्लांटेशन अलग अलग करते गए। और प्लांटेशन में हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। प्लांटेशन हम लोगों ने शुरुआत के समय से तो अब तक काफी प्लांटेशन हम लगा चुके हैं, और वो प्लांटेशन खाली प्लांटेशन नहीं, हम प्लांटेशन के बाद उसका मैनेजमेंट भी करते आए, जैसे कि पेड़ लगाने के बाद उसको पानी देने का साधन। शायद देश में पहला ग्राम सभा था जिन्होंने जंगल में ड्रिप लगाया। काफी लोगों ने हमें हंसा कि जंगल में ड्रिप लगाने ऐसी नौबत आ गई, तो हमने कहा कि भाई अब हम तो करना ही है, क्योंकि हमें पेड़ लगाने के बाद उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो हम लोगों ने प्लांटेशन के लिए ड्रिप लगाया, फिर सोलर लगाया, और सोलर लगाकर फिर वो प्लांटेशन को बेहतर तरीके किए, और ये सब नरेगा में किए। नतीजा ये हुआ कि नरेगा के बाद जो बेहतर रिजल्ट आए हैं कि कई उस समय के अभिजीत भांगर कलेक्टर ने बोला है कि यार नरेगा में प्लांटेशन हुआ उसको फल लगे, ऐसा सब वो देखने आए। जी नेक्स्ट। ताई माइक बंद है। Sorry. So it was after a lot of work that we done on soil moisture conservation that we moved towards plantation, and the entire plantation was also done predominantly under Manrega. However, when we were doing plantation, it was not just plantation activities. We did not just need to plant saplings, but the whole concept was that every sapling that we planted had to survive, because people's livelihood was also dependent on the saplings. We were not just doing, it was not like the forest department who were getting their wages. It was like people who would try and earn some amount of income from this plantation. And that's how you can see that there was a lot of mixed plantation that was done. So there was amla, there was jamun, then there was bamboo. And we can see Collector Amravati, who visited the plantation at, this was I think around 2017-18 when he visited the plantation site, and he could taste amla fruits, and I think he remarked that this was the first time that he was actually tasting the fruits of a Manrega plantation. He had seen many plantations, but this was the first time that he was actually enjoying the fruits of Manrega plantation. And so we could see how the area transformed and how the area benefited from the plantation under Manrega, and how the whole landscape was slowly transforming and slowly changing.
अब हमारे ग्राम सभाओं के पास धीरे धीरे इनकम के सोर्स बढ़ने शुरू हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने जो प्लांटेशन हम लोगों ने लगाया था 2014 से, तो अब तक नतीजा ये हुआ कि हमारे पास अब सुंदर बांस है, जो खुद ग्राम सभाओं ने उसकी कटाई की और कटाई करके उसका खुद मैनेजमेंट किया है। मतलब पहली बार ग्राम सभाओं ने खुद लगाए वाले पेड़, आपने शुरुआत में देखा पूरा बैरन लैंड था, वहां कुछ नहीं उगते थे, वहां अब हमारे पास एक नया और रिसोर्सेस खड़ा हुआ है, जो लोगों को मजदूरी भी, काम भी मिल रहा है और लोगों ग्राम सभाओं को डायरेक्ट इनकम भी हो रहा है। तो ग्राम सभा ने खुद इस वर्ष बांस काटा, उसको बेचा और हमारे नया इनकम सोर्स खड़ा हुआ। नेक्स्ट सही। So this was now we have a new source of income, bamboo. While we had no bamboo when we started out, and there was not even a single bamboo that we could see in the forest of Paivir. Today, after I think 14, 15 years of implementation of community forest rights, the first bamboo that we had planted has been harvested. And I think this probably could be the first story where we can see that a CFR area is harvesting the produce of the plantation under Manrega and benefiting, and the benefits are being shared by the Gram Sabhas. So it is not just bamboo, but there are a lot of other activities also that is being done by the Gram Sabhas. But bamboo and tendu become one of the major activities which basically empower the Gram Sabhas under FRA. Because this is where you require to issue transit permit. This is where the entire control of forest department has moved from the forest department to the Gram Sabhas, and only when the Gram Sabhas start exercising these rights, they realize that the rights are with the community. So this is a process of auction of the bamboo that was undertaken by Paivir this year. हमारे यहाँ पूरा बैनर लैंड था, वहाँ बहुत सारे चीज मिल रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे वन्य जीव का बहुत बड़ा परिवार नया हुआ, जहां हमने कभी घरटे नहीं देखे थे, वहां अब अलग अलग वन्य प्राणी आए हैं, बहुत सारे पक्षी आना शुरू हुआ है, जहां कुछ नहीं थे वहां ये सब चीजें शुरू हुई है। स्लाइड नेक्स्ट। एक साथ आप ताई बताए 2-3 स्लाइड का। और हाँ. यही नहीं कि हमारे यहाँ कोई जानवर भी नहीं थे, अब हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर पक्षी आपने देखा है, बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, जिसमें हरिण है, सांबर है, नीलगाय है, बहुत सारे। अब आपको बता दूं, हमारे यहाँ नया मेहमान भी आया है, सायल का पिक्चर आपने पूरा देखा, और ये मैंने विजुअल बहुत ऐसे डर के लिया है बीबर्ड का। अब नेक्स्ट पिक्चर में इसमें सायल और ये सारे तो आई है, लेकिन इसमें बीबर्ड एक पहला पिक्चर में है। ये सारे एनिमल्स आने से ग्राम सभाओं ने इनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई है, ताकि इनको आसानी से सब कुछ मिले जंगलों में। तो इनके लिए पानवटा बनाया ग्राम सभाओं ने अपने इसमें से, जिसमें ताई खुद एक कोई तो भी वैज्ञानिक महामंडल में बोर्ड में था, तो उन्होंने ग्राम सभाओं को डायरेक्ट पैसा दिया था, उस पैसे में से हम लोगों ने ये एक वाटर बॉडी बनाया था, जो पानवटा करके। So जी। from the barren land to the restoration activities, we can see the return of birds, a lot of wildlife back into the forests of Paivir. We've seen the return. We have seen the pictures of porcupine, and very recently we are also seeing the presence of leopard in these forest areas. So this basically also tell us that our restoration activities are on the right track. And what we have done in the last 14 years is moving in the right direction to ensure that while we were protecting, conserving our forest areas, very early on, we had also undertaken not just drip for the protection of our saplings, but the whole solar and drip was also used to water this water hole in the forest areas, because there was no water body in the forest area at that point in time. And we realized that when we start the conservation activities, we would need some amount of water even for the wild animals, for the birds. And this water hole was developed from one of the government funds somewhere around 2013-14. So this is how we can see the return of the wild animals and birds back into the forests of Paivir. जी नेक्स्ट। इसके बाद हमारे यहाँ एक्चुअल में फायर को लेकर कम्युनिटी खुद यूथ काम करती है और मैनेजमेंट खुद करती है। So there's now the management of fire, because I think a few years back there was a massive fire. Even this year there was some amount of fire, but the entire village, forest department, even the neighboring villages, whenever there is a fire, we put in all the mechanisms of resolving conflicts using Elinor Ostrom's theory, and everyone comes together and we help each other in terms of resolving the issues and resolving fire. So now the youth basically undertake fire line and fire protection measures, not just fire lines,
but there's a lot of activities. How do we manage grazing? How do we manage fire line? All these are managed by the young people in the villages. और इसके बाद फिर हमारे ग्राम सभाओं ने जंगलों से और एक नया इनकम का सोर्स निकाला, जिसमें कैस्टेड एप्पल है, जो हमारे यहाँ पहले से कैस्टेड एप्पल था नदी के दूरों से, और एक कैस्टेड एप्पल को लेके गए। इसमें बहुत अलग अलग हम लोगों ने धक्के खाए, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने झेली, और यहाँ से भी हमें इनकम और रोजगार लोगों को मिलता है। और ये आज हमारे ग्राम सभा का खुद का एक ब्रांड है, जिसमें पैकेजिंग होके जाती है, यहाँ से बम्बई तक जाता है हमारा माल, अलग अलग 2-3 जिलों में जाती है, और बम्बई तक भी माल जाता है। तो हमारे पास अब एक नया रिसोर्स भी मेलघाट नेचुरल्स करके हमारा ग्राम सभा का एक ब्रांड है जी। So this is another source of income for the community, which is basically through the sale and management of custard apple. And again, there is a whole story of how the custard apple has been managed. But where we are today is basically that the custard apple, which is completely natural, also is branded as Melghat Naturals, is not only sold here locally, but it is sold till Melghat. Till Mumbai, and this was a stall that was put outside the Mantralaya in Mumbai and in many other market areas in Nagpur, in Wardha, and in many other areas. And this is also a new source of income for the community. And this is how the community, through little income, these are not huge incomes, but whatever little income basically comes, it contributes to strengthening of the processes of the Gram Sabha and the management of the forest resources. और लोग जब गांव में हैं, जंगल एक तरफ बढ़ रहा है, गांव के परिवार को, हर परिवार को गांव में ही रोजगार मिल रहा है, तो लोग अब बाकी विषयों में ध्यान देना शुरू किया है। जैसे कि हमारा राशन का विषय है, राशन कार्ड हमारे पास कई परिवारों के पास शुरुआत से नहीं थे, क्योंकि ये सारे चीज हमारे बिखरे हुए थे। लेकिन ये सब करते करते हमें ध्यान में आया कि अब हम इन विषयों पे जाना जरूरत है। तो वन टाइम राशन कार्ड हमारे यहाँ बहुत बनाया गया। राशन दूसरे गांव से लाना पड़ता, तो महिलाएं हमारे यहाँ बहुत ग्राम सभाओं से जुड़ नहीं पा रही थी, तो हमने ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी बड़े करके हम लोगों ने महिलाओं को बचत गट के द्वारा उनको राशन शॉप दिलवाया, और वो राशन शॉप खुद चलाती है। उनका स्टोरी आप ग्राम सभाओं के यूट्यूब चैनल पे खुद देख सकते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर खुद की एक पिक्चर बनाई गई है। और अब लोग एकत्रित आकर बैठक करते हैं, माल न्यूट्रिशन पर चर्चा करते हैं, स्कूल पर चर्चा करते हैं, और हर एक विषयों पे अब लोग इकट्ठा आकर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट। So this was also a story of when people started, basically when the migration process stopped, people started staying in the villages, and a lot of other issues also started cropping up. One of the big issues of the women was of the fair price shop or the ration shop. And there's a whole story, there's a whole film on their entire process, which is there on the YouTube channel of Gram Sabha Paivir. But that was a struggle, and in that struggle, what happened really was not just to work on the ration shop owner, which was almost 8 to 10 kilometers away, but what happened was that we managed to get the ration shop into the village, and the ration shop today is run by the women of the village. Not just in this village, but even in the vicinity, there are many villages now where women run the ration shop, and which was led by Paivi. And there are many things now. People have started talking about the Anganwadis. People have started talking about the health status of children in the village. People have started talking about the status of school in the village. So once the community started staying back in the village, all the other questions, all the other issues of development has been prominently discussed in the Gram Sabhas, and the Gram Sabha is involved in addressing the issue. स्कूल हमारा आज के समय में बहुत बेहतर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन बहुत बेहतर हो। ग्राम सभाओं के पास जितने भी इनकम सोर्स अलग अलग तरह से आते गए हैं, वो हम इन बच्चों के लिए हमारे यहाँ आज हमारा स्कूल लगभग, कई लोग कहते हैं कि कॉन्वेंट से कोई कम नहीं है। हमने बहुत सुंदर बनाया है। हमारे यहाँ हर साल बच्चों के लिए बहुत अलग अलग एक्टिविटी है। नेक्स्ट पिक्चर आप बताते जाइए। और अलग अलग चीजों करते गए। ये वीडियो स्किप किया तो आगे भी जा सकते हैं। तो आगे हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों का बहुत सारे गैदरिंग होते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, और ये सारे बच्चे गांव के आदिवासी बच्चे हैं, और बहुत सुंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि लोग इकट्ठा है, लोग जंगलों के साथ जुड़े हैं। और जंगल के साथ जुड़े रहने के मतलब ये नहीं कि खाली जंगल का ही काम कर रहे हैं, आप स्कूल को भी बहुत बेहतर तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं ग्राम सभा।
So the whole issue of education also has taken prominence, and the school basically is now, it is a government school, but the school management committee, which comprises of the people of the village, basically is completely in charge, and the school management committee manages the school in a manner where children actually are able to benefit from the learning processes. There are a lot of activities which are organized by the school every year, and the Gram Sabha also contributes to the management of the school, to any of the school, for the school functions, programs, or for in the teaching learning processes. So the entire, since the people are in the village, now they are concerned what is the quality of education that the children are getting. So while children also go to schools outside, even the village, the government school in the village actually runs quite well. और आज के समय में हमारे यहाँ बच्चों का, नेक्स्ट स्लाइड, आज के समय में बच्चे बहुत अलग अलग तरह से जा रहे हैं, और ये फाइनली हमारे आदिवासी बच्चे हैं, और ये भी उड़ना चाहते हैं, और ये भी आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, और ये हम उनके लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं. So this is also about the whole aspiration of our aspiration for our children, that we also want our tribal girls and the forest dwelling communities to take flight, to move towards success, and success not really in the terms that we define it in the city language, but also success in terms of managing their own resources, managing their own forests in a manner which is going to be much beyond what we've been able to do currently. अब हमारे यहाँ किसानों को भी हम अलग अलग इनकम के सोर्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आखिर किसान डेवलप होगा तो जंगलों पे वजन कम आएगा, जंगलों पे प्रेशर कम रहेगा काम का, तो किसानों को पोल्ट्री की तरफ हम जोड़े जा रहे हैं. जो भूमिहीन लाभार्थी है, भूमिहीन परिवार है, उनको हम अलग अलग योजनाओं से, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल में चारा बहुत है, क्या वो दुधाड़ की व्यवसाय कर सकते हैं, तो कुछ परिवारों को हम लोगों ने दूध की भैंसी देने के लिए प्रयत्न किया, और कुछ परिवारों के पास पैसे नहीं थे, तो ग्राम सभा ने 0 इंटरेस्ट पे उनको कुछ पैसे दिए, और अपने पैसे और खुद के पैसे और ग्राम सभा के कुछ मदद से और सरकार के कुछ कंट्रीब्यूशन से आप एक बेहतर कैटल बफेलो लो और अपने उपजीविका को आगे बढ़ाएं. So it is also about strengthening livelihoods, strengthening agriculture of the village community. So the Gram Sabhas have also contributed in terms of supporting the village, the community members, in terms of strengthening their own livelihoods, because they don't want people to be dependent just on the forest, but they also want them to diversify their livelihood sources. So people have been helped in undertaking dairy activities, in undertaking poultry activities, and a lot of other activities which is adding to the livelihoods from the forest and agriculture. Can we move the slides, please, Aditi? Next. और इसके बाद फिर गांव अपने एकजुटता होकर गांव को भी बेहतर कर रहे हैं. मतलब आप समझ सकते हैं आदिवासी गांव भी बेहतर हो सकता है, सुंदर हो सकता है, वैसे ही सुंदर है, नो प्रॉब्लम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लेकिन वैसे ही सुंदर है. हम और बेहतर करने के लिए उनको किया है कि गांव इकट्ठा है. आज हमारे यहाँ गांव के पास एक छोटा लाइब्रेरी है, लोग बच्चे पढ़ते हैं. हमारी ग्राम सभा रेगुलरली मीटिंग बैठती है जरूरत के हिसाब से, और हम शाम को ही बैठते हैं. हमारे यहाँ का सबसे विशेषता यह है कि हर परिवार को एक नोटिस जाती है, एक कागज जाता है जिसमें लिखा होता है कि क्या विषय है और क्यों बैठना है. तो ये हर ग्राम सभा, हमारी ग्राम सभा हर जब भी बैठती है वो करते हैं. और लगभग हमारे यहाँ 3 रजिस्टर हो गए हैं ग्राम सभाओं के, मिनट्स रजिस्टर, जो आज बड़ा डॉक्यूमेंट्स है. हम पुराने पढ़ते हैं तो इतने बहुत सारे इश्यूज को हमने सॉल्व करने की कोशिश की इस ग्राम सभा में. जी, नेक्स्ट. So this is also this is the secretariat of the Gram Sabha and the library of the village, where basically people, children, all of them come together and sit. This is also a picture of the Gram Sabha collectively meeting together and discussing the issues of the village. Now, if we look at the past, that we have a full 3 register of recordings of the Gram Sabha minutes. And when we look back, we also realize what kind of complicated issues we have dealt with. So this is a whole process of trying to make the village look more interesting, trying to incorporate our culture into our village, and trying to see how we can integrate all these learnings into the development of the village as we move forward. Next.
और ग्राम सभाओं के बहुत सारे रूल्स है, उसका एक झलक है, आप ये स्लाइड्स बाद में ले सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग रूल्स है, कहाँ पे चराना है, कौन चराएगा, चराई जबरदस्ती की तो उसके लिए रूल्स क्या होगा, कटाई कहाँ करेंगे, कटाई कौन सा पेड़ का करेंगे, ये सारा चीज ग्राम सभा अपना एक जार की जरा रूल्स कैसे बनाते हैं, वो सारे रूल्स अब फ्लैग्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और जंगलों में भी लगा है। नेक्स्ट। So this is an example of the rules that are framed by the Gram Sabhas, and the Gram Sabha has framed various rules for various kinds of situations. And the Gram Sabha is putting boards in different places just to inform people of the rules that the Gram Sabha has framed for the management of its forests and natural resources. Next, please. और इसके बाद आप देख सकते हैं बड़े हैं और कैसे बदलाव हो रहे हैं, देखते रहिए। ये पिक्चर्स है जो पहले और अब के, इसमें काफी बदलाव हो रहा है। नेक्स्ट। So we ये can see, जी sorry. बोलिए। So we can see the changes in these pictures, the transformation that is happening from the beginning to now. We can see some amount of changes which have happened. These may not be as we wanted. We thought that 10 years there would be drastic change, but that drastic change has not really happened. But there is transformation in this area as we see. नेक्स्ट अदिति, पिक्चर्स आप खुद व्यू देख लीजिए। और ये सारे पिक्चर्स को अलग अलग लोगों ने विजिट किया है, और जिसमें 2012 में महाराष्ट्र के राज्यपाल आकर गए, आदिवासी मंत्री आकर गए, अलग अलग किरण कलेक्टर गए, गवर्नेंस के बहुत सारे लोगों ने यहाँ विजिट किया है। नेक्स्ट। The village has been visited by a lot of dignitaries, including the governor of Maharashtra, the tribal minister. Almost all collectors have visited Paiveer in the last 14 years. आपको मैंने शुरुआत में कहा था आप सभी को कि ग्राम सभाओं के पास जब पहली बार बैठ रहे थे तो सिर्फ 4 चेयर थे। आज ग्राम सभाओं के पास ये सारा चीज है, जहां बहुत बेहतर तरीके से बैठक हो सकती है, बेहतर तरीके से लोगों के साथ चर्चा कर सकती है। आज इंटरप्रिटेशन सेंटर ग्राम सभा के पास है। नेक्स्ट। So we can from the 4 chairs that we had to collect it from the village for the meeting. Today the Gram Sabha has its own interpretation center where they have their meetings. They have meetings of people who come from other states to learn the processes, to learn and see the watershed structures, to learn and see the Gram Sabha processes. The Gram Sabha has its own resource that is managed by them and not by anyone else. नेक्स्ट। लोग खुश है और जंगलों को आप बहुत अलग नजर से देख रहे हैं। लोग अपने कल्चर में खुश है, जंगल को अपना मान रहे हैं और लोग बहुत हैप्पी होकर जी रहे हैं। So people are now very contented with the whole process that has happened in the last 10, 12 years. People are happy. People follow their own culture. They have revived the culture which was lost. And people are now enjoying the fruits of not just the restoration process, but of the hard work that they have put in the restoration process. नेक्स्ट। ग्राम सभाओं को अलग अलग कामों के लिए, अवार्ड के लिए तो हमारा काम था नहीं। हमारे गांव के पहली बार लोग विमान में सफर करके अंडमान निकोबार गए थे। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड यूएनडीपी ने दिया था डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के लिए। अलग अलग न्यूज ने कवर किया है पाइवेर को अलग अलग समय में। फॉरेस्ट के अलग अलग अवार्ड भी लिए हैं। ग्राम सभा के पास ग्राम सभाओं का खुद का पैन कार्ड है, खुद की ग्राम सभा का चेकबुक, बैंक, सभी डिटेल्स। So the Gram Sabha actually also received awards. Our work was not meant for, not done for awards, but in the process we got several awards. And the first award, the Gram Sabha members actually flew to Andaman Nicobars to receive the UNDP India Biodiversity Award for decentralized governance. And then there were many other awards that came to the Gram Sabhas in the due course of time. नेक्स्ट। And ग्राम all the सभा जो people कर have रही है, collectively. सॉरी जी, And all ग्राम the सभा people जो have collectively worked. Sorry. हाँ हाँ, ग्राम सभा जो कर रही है वो खाली हम करने से सारा चीज बदलाव होगा नहीं। हम चाहते हैं कि ये सारे अलग अलग बहुत जगह पे होने की जरूरत है। और ये सब करने के पीछे आप देख सकते हैं, ये 2 पिक्चर्स बहुत पुराने हैं। इसमें अदिति भी होंगी, ताई भी होगा, आई थिंक मैं होगा। क्या मैं पिक्चर्स निकालने में ज्यादा था क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट बहुत संभाले हैं। तो ये ग्राम सभा और लोग बाहर के सभी लोगों ने मिलकर इसको बहुत बेहतर तरीके से यार एक खड़ा किया है। नेक्स्ट अदिति, ताई। So this is an effort of all people, of several people
from the village, young, old, government, non-government, everyone together has basically been part of this process, and everyone has together contributed to this process. And those pictures are reminder of where we began. यस, ग्राम पंचायत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, बीडीओ, सीओ, गवर्नेंस, ट्राइबल डिपार्टमेंट, कोच, सभी लोगों का बहुत अलग अलग जिम्मेदारी रहा और ये तभी ये पॉसिबल हुआ है. So this is like a collective teamwork, and everyone has played their role, and everyone has contributed to the process of restoration. And we think that this is and the entire effort is basically a result of teamwork, which was led by the Gram Sabhas, but several people joined hands to ensure that this restoration moved ahead. Thank you. आप सभी का धन्यवाद. आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना. सॉरी हम लोगों ने, क्योंकि ये 15 साल की कहानी है और हम लोगों ने ये बहुत ज्यादा समय लिया, तो माफी चाहेंगे, हमने थोड़ा ज्यादा बोल दिए. थैंक यू. Apologies for taking a lot of time, and this was a story of 15 years that we were trying to tell, but we took a bit of more time than I think we were expected to. Apologies for that. Thank you so much for this amazing presentation. And yeah, personally, it's also where I see myself after growing up with the whole process of it. So we have 10 minutes. We can take few questions. We have questions in our chat. So I'll start with the questions and then maybe we can then go ahead. So first question is from Aditya. Are most of the lands forest land, or are there government revenue lands near Paivir as well? No grazing zone without conflicts. So आप में से कोई अगर इसको स्पीकर्स में से इसको कोई आंसर करना चाहेगा? मैं आंसर रामलाल मैं कर दूं. हेलो, प्लीज. हेलो. हाँ बोलिए. So there's a little amount of revenue area around Paivir. So the areas where you can still see that there is no growth is basically revenue area or area which is owned by farmers on the periphery of Paivir. And otherwise, this is largely a reserve forest area which has been given under CFR. In Paivir, there were no pastoralists. But of course there were conflicts, as we pointed out earlier. शुरू में जो लोग आए जिनके पास में जानवर थे, those people came and the Gram Sabha basically explained to them that they were trying to protect their areas, and there were not. I think there were conflicts. We would not say that there were no conflicts, but the Gram Sabha basically managed it with its rules. तो कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी बीच बीच में. कभी कभी लोग आ जाते थे, अगल बगल के गांव के आते थे, पास पड़ोस से चलने वाले आ जाते थे. So there was some amount of conflicts, but managed by the Gram Sabhas. Moving to the second question. What was the biggest challenge in this entire effort? How did you navigate सबसे बड़ा that? चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि ग्राम सभाओं जो बुजुर्ग लोग हो उनके साथ बैठना, क्योंकि वो एक बड़ा चैलेंज रहा हमारे साथ. और दूसरा कि हमारे जंगल को जो प्रोटेक्ट, जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमारे आसपास के लोग भी इसको बहुत तकलीफ दे रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ा दो चैलेंज हमारे सामने रहा है. और वैसे हमारे यहाँ तो कोई बिना चैलेंज का एक भी वर्क नहीं है. चाहे हम वो सीमेंट बंधारे भी बनाना सो, उसके पीछे भी बहुत हमारी अलग कहानी है. उसके लिए तो पूरा समय लग जाएगा, क्योंकि हमारी सीताफल की भी एक बहुत बड़ा चैलेंज कहानी है, तेंदू की बहुत बड़ा चैलेंज कहानी है. तो सबसे बड़ा चैलेंज वैसे हमारे बुजुर्गों के साथ हमारा विश्वास बॉन्डिंग कराना था. युवाओं का एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हम किया है. रामलाल जी, आपके लिए एक और क्वेश्चन है. जो युवा मनरेगा के पैसे आने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर रहे थे, उनको क्या कोई तनख्वाह मिलती थी?
तो ये क्वेश्चन समीरा जी बिल्कुल भी का। नहीं, मुझे आज भी याद है। मैं तो आज भी ग्राम सभाओं से कुछ भी नहीं लेता हूँ। अभी फेडरेशन से अलग बात है, मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन ग्राम सभाओं से, मैं पाइवीर के ग्राम सभाओं से अभी भी नहीं लेता हूँ। उस समय के दौर पे तो हमारे पास पैसा ही नहीं था। और लेकिन हमने सोचा था कि ग्राम सभाओं से हम इनको पैसे नहीं दे पाते थे जो लोग इसके लिए भागदौड़ करते थे, जिसमें मैं ज्यादा भागदौड़ इसलिए भी कर पाता था कि मैं कोच के पास से बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए, वॉलंटरी के लिए मैं थोड़े पैसे भी लेते थे, ताकि मुझे कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करा ही देते थे शुरुआती तौर पे। तो मेरे पास थोड़े बहुत थे जो मैं भागदौड़ कर पाता था। मेरे साथ फिर एक कृष्णा भाई थे, श्री राम थे, जो शुरुआत के दौर से था। तो इनको मैं फिर साथ में लेके जाता था कहीं पे कि चलो बाइक में बैठते हैं। लेकिन इनको भी शुरू से कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं काम बनते गए। तो फिर लोगों को जैसे सीतापल में से थोड़े पैसे आते थे, तो फिर हम फ्यूल का, उनके लिए फ्यूल का अरेंज कर लेते थे। जी। और फिर मनरेगा से उसी को जोड़ते हुए फिर मनरेगा में वो साथी जो है उनकी कुछ भूमिकाएं बनती हाँ, गई और कृष्णा मनरेगा को से फिर कुछ ना हमने, कुछ यस, रोजगार सेवक के तौर पर कृष्णा को फिर कुछ हमने पैसा फिर उसी का मिलना। पूरा मॉनिटर करने के लिए अलर्ट कर दिए ग्राम सभा में कि आप ये फुल टाइम यही काम करो, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्टाइज है, आप यही करेंगे। आज के तौर पर उसको हम रोजगार सेवक कहते हैं, लेकिन ये सरकार कहती है। हमारे यहाँ तो हमारा जंगल डेवलपमेंट अधिकारी है जो हर मैनेजमेंट करता है, वो सरकार के लिए सिर्फ रोजगार सेवक है, जहां से उसको हम पैसे की सिक्योरिटी दे के रखा है। जी। ओके। इंस्पायरिंग वर्क, सोनाली जी का आपके लिए मैसेज है और क्वेश्चन भी है। इंस्पायरिंग वर्क, आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट, coordinating with government departments is often challenging. What strategies have worked best for you in onboarding and collaborating with different departments? Is it persistence, relationship building, or something else? How do you identify and engage officers who are willing to support the initiative? हिंदी में कोई बताए हाँ, तो मैं तो समझा इसमें सकूं। बेसिकली पूछ रहे हैं कि हम सरकारी लोगों के साथ में हम अपना रिश्ता कैसे बनाते हैं और उनको जोड़े रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं। आप बोल दो, फिर कुछ छूटेगा तो मैं बोलूँ। हाँ, नहीं, बेसिकली हम लोगों ने सरकार के साथ रिश्ता बनाने के लिए तो हम लोगों ने हमारे ही पहल किया था कि हमको मदद चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार, डिपार्टमेंट कहेंगे सरकार की वजह, कि जो अधिकारी है इनको काम करना होता ही है। लोग कभी एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली अधिकारी काम करने को शुरुआत करते ही करते हैं। अब लोगों को हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना चाहिए करके ग्राम सभाओं को बहुत सारे एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जैसे जंगल का खाली नरेगा काम नहीं हुआ है, फिर आप नरेगा के प्लान है, उनके साथ रिश्ते बनाने होते हैं। फिर हम, और ये पूरी चीजों में परवीन परदेसी सर बहुत मायने रखा है। हम, हमें कोई अधिकारी की तरफ से रिस्पांस नहीं आया तो हम तुरंत उनको मैसेज डाल देते हैं या सीधा कॉल कर देते कि सर हमें ऐसी अड़चन आ रही है, या फिर ताई उसको उनके स्तर पे सॉल्व कर देते थे। तो मुझे लगता है कि चैलेंज तो रहा है उनके साथ, और उसको आगे बनाने के, और एक बार, और सरकार को सबसे एक बेहतर चीज ये लगी है अधिकारियों को कि पाइवीर जो कर रहा है, पाइवीर जो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो बाकी विलेजेस से बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बाकी विलेजेस में तो योजनाएं बहुत हम चला रहे हैं, लेकिन वो इतना कोई खास उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ग्राम सभा पाइवीर को हम थोड़ा भी देते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो उनको खुद को बेहतर दिखाने के लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म उनको काम में आया है। उदाहरण के लिए कि एक अधिकारी वनपाल था, ताई अच्छी तरह जानते हैं, आरएफओ बाद में बने हमारे यहाँ बारखड़े करके। वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ कुछ प्लांटेशन नहीं कर सकते, सक्सेस नहीं है, लोग मॉनिटर नहीं कर सकते। ऐसे उसकी अपनी समझ थी हमारे प्रति। लेकिन हमने कहा सर हम करके देखते हैं, हमको करने का मौका दीजिए। उन्होंने दिया। फाइनली उसने देखा है कि ये कम्युनिटी ने बहुत बेहतर अचीव किया है। वो जो चीज को अवॉइड करता था, हमारे यहाँ का प्लान कई साल तक उसने अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में फोटो लगा के फिर रहे थे कि ये प्लांट हमने लगाया है। तो अधिकारी को लगता है कि कम्युनिटी जब करती है और वो बेहतर कर रही है, तो वो जरूर उसको एक्सेप्ट भी करती है। तो ऐसा करते करते हमारा एक आज के समय में, मतलब मैं आज गया था सुबह हमारे शिक्षण को लेके, हमारे सरपंच भाई अमित भाई और हमारे कृष्णा जो अध्यक्ष भी हमारे शालेय व्यवस्थापन समिति के। तो बीडीओ और शिक्षण अधिकारी के कैबिन में हम जैसे ही दाखिल हुए, अच्छा पाइवीर के लोग आए, भैया इनका जल्दी अरेंज करो, इनको क्या करना है।
तो आज वो समझते हैं कि इनका विषय जो भी यहाँ लाते हैं ये इनका व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं समुदाय का बेहतर के लिए होता है, ये कहीं ना कहीं एक हमारे ही डिपार्टमेंट को बेहतर करने का इनका सुझाव होता है। तो आज डिपार्टमेंट और हर जगह पे रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है पाइवेरी ग्राम सभा को। थैंक यू, कुछ छूटा सेकेंड, तो जोड़ दीजिए। हाँ, नहीं ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विद सोनाली जी का ही सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड, विद द चेंजिंग मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, हाउ डू यू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द इनिशिएटिव एंड सस्टेन द एफर्ट्स ओवर टाइम? रामलाल, हम कैसे अपने नए जनरेशन के साथ में अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, तो ब्रीफली थोड़ा थोड़ा छोटे में करो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, अगर हो सके तो और भी ओके, सवाल ले लें। ओके, सॉरी। तो ये बहुत हमारे लिए ये हमारा पहला काम है, क्योंकि मैंने जो को एग्जिस्ट को देखा है, को एग्जिस्ट का फेलोशिप में लास्ट ईयर कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि एक हमारे जनरेशन गैप हो रही है, लेकिन पाइवीर में मैं खुद एक एफर्ट लगा के काम किया था। मुझे याद है 2015-16 से मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा एज के जो जनरेशन कर रहा है, क्योंकि मेरे पहले जो जनरेशन है उसने तो जंगल खत्म कर दिया है अलग अलग माध्यम से, लेकिन हम इसको खड़ा करेंगे और खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद का जनरेशन इसको क्या नजर से देखेंगे। तो ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज वैसे ही दिख रहा था। तो मैंने बच्चों को उस समय के, मुझे 2012-13-14 के बच्चे जो थे पहली दूसरी में, उनको कंटिन्यू हर महीने में जंगल लेते आया, हर महीने जंगल लेते आया, लगभग 2019 तक कंटिन्यू लेते आया मैं। और नतीजा कुछ नहीं, बहुत बस लेते आना, उनको दिखाना कि ये आपके पापा ने किया है, ये पेड़ आपके पिताजी ने लगाया है, ये आपके दादाजी ने लगाया है, ये आपके मम्मी ने यहाँ काम किया है, और ये इसलिए किया है कि आगे आपको बेहतर जंगल मिले, आपको बेहतर पर्यावरण मिले। अच्छा, ये हमारे लिए लगा रहा है, तो ये हमारे लिए आज एक इतना बड़ा हो गया है कि आज वो बच्चे 21-22 साल के हो गए, 17-18 साल के ऊपर के हो गए, वो बहुत सारे जिम्मेदारी में अब आगे ले रहे, वो खुद होके बहुत सारे मैनेजमेंट अब खुद करना चाह रहे हैं। तो हम, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन इसको और बेहतर बनाएंगी, हमसे भी बेहतर बनाएगा, ऐसा अपेक्षा तो जरूर कर रहे हैं जी। दूसरा क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए मैं इसको बता देती हूँ कि डिड एनी अदर विलेज इन मेलघाट फॉलो द सेम वर्क एज पाइवीर? एग्जाम्पल, इस हाँ। इसको मैं ऐड कर देती हूँ कि जैसे इनिशियली वी सेड दैट पाइवीर इज वन ऑफ द विलेजेस इन द क्लस्टर ऑफ 5 विलेजेस। सो देर आर सिमिलर एग्जाम्पल्स, बिकॉज हम लोगों ने जब काम शुरू ही किया था तो हमने ये सोचा था कि हमें आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस नहीं बनाना है, हमें वो एग्जाम्पल्स बनाने हैं जो अदर कम्युनिटीज भी इसको फॉलो कर सके। सो देर आर मोर देन 50 to 70 विलेजेस इन मेलघाट, इन द periphery and within the Melghat Tiger Reserve, even within the sanctuary and within the core of the Melghat Tiger Reserve, where community forest rights has been recognized, and where Gram Sabhas are managing their forest, or where Gram Sabhas are managing their water bodies, they are managing their minor forest produce, they are conserving and protecting their resources. There might be some back and forth, but there are almost 50, more than 50 to 70 Gram Sabhas which are participating in this process. And as Ramlal pointed out, कि हमारी लगभग 56 ग्राम सभाओं का फेडरेशन है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो वो केवल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट करता है, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोसेस में इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन की प्रोसेस में काम करता है। आज लगभग इतने ही गांव हमारे जो है वो मनरेगा में, ऑल दी CFR ग्राम सभाs have been recognized as agencies under मनरेगा. So they are also undertaking other works within their forest areas, which could be soil moisture conservation work, plantation activities, protection activities. So there are works happening across Melghat, and all of you are welcome to come and see the work and to come and visit the villages. यस। उसके बाद का क्वेश्चन है, could you share bit more about the history of landscape? How was it before? Did people feel there was less resources available and it was degraded or not proper as a landscape? Were their problem faced? सो ये क्वेश्चन शायद थोड़ा लंबा होगा, उसको अगर हम शॉर्ट में बता पाए कि हमारा जंगल की हिस्ट्री क्या थी। जैसे आपकी वो स्टोरी है कि जो कल्चरल रिचुअल में लगने वाला लकड़ी जो आपके यहाँ मिलता था वो नहीं मिल पाया, उसको अगर आप थोड़ा सा बता पाएंगे तो शायद वो समझाने में थोड़ा क्विक अगर हम कर पाए तो।
नहीं, एक्चुअल हमारे यहाँ पहले तो जंगल पूरी तरह नष्ट ही था, और वो वापस आया है। जैसा आपने तो कह दिया वैसे कि शादियों में लकड़ी, आज के पहले या 2010 के पहले जितने भी हमारे यहाँ शादी हुए ना, सारे लकड़ी लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर से, मतलब जंगलों से, जहाँ हमारे गांव से काफी दूर है, 4-5 गांव दूर होकर लोग दूसरे गांव को रिक्वेस्ट करके मंगाना शुरू कर दिया था। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए था। लेकिन आज के समय में ये है कि हमारे यहाँ जितने भी शादी होती है, ग्राम सभा को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमें इतना इतना सब चीज चाहिए, और इतना इतना चीज के लिए हमें जाना है, तो ग्राम सभा उसको पास देती है और वो खुद जाता है और अपने दिल से सब कुछ लेता है, और वो उतना ही लाता है, ज्यादा बिल्कुल नहीं लाते हैं। तो आज और पहले के इसमें तो बहुत सुंदर बढ़िया हो गया। पता नहीं मैं जवाब दे पाया या नहीं। यस। अनीता दी हमारे यहाँ आई थी पाईवीर में, अगर आपको याद होगा फरवरी में। तो उनका ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी फ्रॉम ईआरए नेटवर्क सपोर्ट योर वर्क, वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम यू। तो एज ईआरए नेटवर्क हम आपको आपके काम में किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, कि आपसे हमें बहुत सारी सीख भी हमें मिल सकती है। तो आप उसके बारे में भी क्या सोचते हैं? अ, नहीं, ग्राम सभाओं को मदद करना बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं वो तो। अलग अलग माध्यम से बहुत सारे, अब तुरंत मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि ये जो नया जनरेशन है, इसको हम क्योंकि हमारा को एग्जिस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज भी। तो को एग्जिस्ट हम क्या इन तक पहुंचा सकते हैं, अलग अलग हमने जो 2-3 सालों में निकाल के रखा है कि हमारे जनजातियों के पास जो कल्चर है, वो बच्चों के साथ हम कैसे शेयर कर पाएंगे, तो उसका अलग अलग मेथड उसमें कर सकते हैं। और बाकी चीज और भी हो सकता है, अब मैं तुरंत नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। या हाँ जरूर, मतलब हम कुछ चीजें आपकी ओर से ईआरए कम्युनिटी तक पहुंचा भी सकते हैं। ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन है, वो है हाउ कैन वी प्रूव दैट द कम्युनिटी क्वालिफाइज फॉर सीएफआर विच इज नॉट अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द एक्ट, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, the land is a reserve forest and the community was recently granted land under FRA. Each village has its own community forest which we want to conserve under the CFR. हम्म। सो आई थिंक मैं ये सवाल का थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हुआ तो आप अपना सवाल दोबारा उसमें लिख सकते हैं कि हम लोगों ने जो प्रोसेसेस में इस्तेमाल किया है सीएफआर क्लेम करने की प्रोसेसेस में, हमारे पास हमारे में हमने हमारा लोकल मैप जो था फॉरेस्ट का, हमारा नजरिया नक्शा जिसको हम कहते हैं, वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है एज एन एविडेंस। हमने हमारे विलेज एल्डरली का बयान, जो विलेज एल्डरली का डॉक्यूमेंट है, वो हमने यूज किया है एज एविडेंस। उसके अलावा हम लोगों ने ग्रेजिंग पासेस को यूज किया है एज एन एविडेंस। हमने और एक चीज यूज की थी, जो जेएफएम के प्लान्स थे, हमने वो भी यूज किया था एज एन एविडेंस कि हम लोग जो है इस जंगल के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर जेएफएम बनी हुई है तो इसका मतलब ही ये है कि कम्युनिटी जो है वो यहाँ इस जंगल के मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो हम लोगों ने इस तरीके की अलग अलग चीजें यूज की है। प्रोटेक्टेड एरियाज में हम लोगों ने सेंचुरीज डिक्लेयर करते समय जो इंक्वायरी होती है कलेक्टर के द्वारा, वो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को भी हम लोगों ने यूज किया है सेंचुरी के विलेजेस के लिए, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि देखिए इसमें इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है। और वो इंक्वायरी रिपोर्ट को यूज करते हुए हम लोगों ने राइट्स रिकॉग्निशन को इंश्योर कराया है फॉर द कोर ऑफ द मेलघाट टाइगर रिजर्व और एंड द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एज वेल। तो ये इस तरीके से मल्टीपल चीजें हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग गांव में यूज करी है एज एविडेंस फॉर सीएफआर एरियाज। हमारा कुछ एरिया शेड्यूल 5 है, और पाईवीर का इलाका तो शेड्यूल 5 भी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल रूरल विलेज में आता है, ये शेड्यूल 5 का भी एरिया नहीं है। ओके। जी। अगला सवाल रामलाल जी के लिए है कि महिलाओं का किस तरीके से माइक्रो प्लान की जो प्रोसेस थी उसमें महिलाओं का कैसे योगदान रहा है, क्योंकि महिलाओं का ट्रेडिशनल नॉलेज में एक जो, क्योंकि वो जंगल से जुड़ी हुई होती है, उनका एक ये होता एक कनेक्शन जो जंगल से होता है, उसको देखते हुए महिलाओं का किस तरीके का इसमें पूरे इसमें सहभाग रहा है?
शुरुआती तौर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है, क्योंकि क्या है ना कि कोरकू जनजातियों का जो जाति पंचायत ही है, जाति पंचायत में महिलाओं को बिल्कुल अलाउ नहीं था। ये हम लोगों ने देखा है बचपनों से। लेकिन हमने पहले उसी को बतलाया है कि भाई हम जाति पंचायत में महिलाओं को बैठने की सहभागिता दिया जाए। जो हमारे गांव के जो मुखिया है उनको हमने बहुत रिक्वेस्ट की, और हमने उनको रिक्वेस्ट इसलिए कर सक्सेस कर पाए। उनको कहा कि जब अब तक हम महिलाओं को भागीदारी नहीं देंगे तब तक हमें क्लेम ही नहीं मिलेगा, इसलिए हमको ये चाहिए ही चाहिए। तो हमने वो मुखिया को रिक्वेस्ट करके उनको भागीदारी बढ़ाती गई। मैक्रो प्लान में वो सक्रिय रही है, क्योंकि उस समय वो लोग भले ही शुरू में बहुत ज्यादा नहीं थे। शुरुआती में हमारे कुछ मॉडल महिलाएं थी, जिसमें मंगराय काकी आज भी थी, जिसमें मेरे मम्मी भी थे असमुती, फिर अलग अलग लक्ष्मी दीदी है वो थी। ऐसे चार पांच महिलाएं जो शुरुआत से पुरुषों के साथ खड़े रहकर हमारे साथ काम किया था। आज उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया है और उन्होंने महिलाओं को एकत्रित किया है। और महिलाएं स्वतंत्र रूप से हमारे यहाँ बहुत बेहतर तरीके से बैठती भी है और खुद का प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सकती है, और ऐसा कई बार उन्होंने किया भी है। जी। और इसका इसका एक खाली एक संक्षिप्त में एक उदाहरण ये देना चाहूंगी कि केवल ये नहीं, जो हमारा पूरा ये क्लस्टर है पाईवीर और इसके आसपास के 4 गांव का क्लस्टर जो है, यहाँ की पूरी महिलाओं ने मिलकर दारूबंदी के ऊपर की ग्राम पंचायत की ग्राम सभा लगाई, पंचायत की ग्राम सभा लगाई। और कोई भी पंचायत की ग्राम सभा, मैं तो महाराष्ट्र में कहती हूँ कि कोई पंचायत की ग्राम सभा जो है वो सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक नहीं चलती है। दारूबंदी की ग्राम सभा लगभग 100, 150, 200 महिलाओं के साथ में 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चली है। और पूरे पंचायत में और हर गांव की ग्राम सभाओं में जाकर महिलाओं ने दारूबंदी करवाई है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाया है। और उसके बाद से महिलाओं की ताकत तो जो है वो अजब है देखने जैसी। राशन दुकान तो बहुत महिलाएं चलाती हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अपने आप में लाया, हम लोग तो केवल उनके साथ साथ चल रहे थे, ये सब उन्होंने किया है। तो ये भी अपने आप में एक स्टोरी है देखने और समझने जैसी, कि जिसको हम समझ सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जी। विद द चेंज ऑफ मनरेगा टू वीबी जी राम जी, विल इम्पैक्ट द कम्युनिटी इन एनी वे? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र वॉज द क्या पायोनियर बोले? इन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महाराष्ट्र के पास 365 दिन रोजगार देने की प्रावधान है, क्योंकि हमारे पास अपनी एम्प्लॉयमेंट गारंटी की भी योजना है। तो हमें तो नहीं लगता है कि योजना बदलने से बहुत ज्यादा फर्क होगा। हाँ, थोड़ी सी क्लैरिटी आने में समय हो रहा है, उसके चलते थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर हमें लगता है कि हम लोग जो काम मनरेगा से कर रहे हैं उसको हम लोग इसी तरीके से कर पाएंगे। इसकी हमें तो शायद बहुत ज्यादा चिंता नहीं। As existing करेक्ट। GFMC was not disbanded and JFM funds were channeled for CFR work, was there any influence from forest officials with regards to utilization of funds? तो सवाल ये है रामलाल की, क्योंकि हम लोगों ने हम्म। जेएफएम बंद नहीं किया था, तो जेएफएम का जब पैसा आता था सीएफआर के काम के लिए, तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसको इन्फ्लुएंस करते थे या उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रेशर बिल्ड करते थे? यहाँ तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी ग्राम सभा इतना सक्षम हो गया था। वो कई बार हमारे अलग अलग जगह पे प्रेशर किया है कि उसको पेमेंट दे दो। जैसे सीमेंट बंधारे का हमने किया था, तो इसको दे देना चाहिए सरकार। डीएफओ तक ने हमको कॉल किया है कि लिस्ट कर दो। हमने कहा अब 40-42 लाख रुपए। जी। मेरी आवाज कट तो नहीं ना? शायद मुझे लगा थोड़ा सा कटा है करके। हाँ। तो तो इसका इसका एक छोटा उदाहरण यही है कि कोविड के समय में महाराष्ट्र की लगभग सारी जेएफएमसी ने अपने अपने पैसे जो थे वो सरकार को वापस कर दिए थे, क्योंकि सरकार ने हाँ। मांगे थे। लेकिन हमारे यहाँ के जितनी ग्राम सभाएं में जेएफएमसी थी और जहां पे जेएफएमसी के पैसे थे, किसी भी ग्राम सभा ने 1 रुपया सरकार को वापस नहीं किया। और उन्होंने कहा कि हमारा प्लान है और हम आपको ये पैसा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, और हमारी ग्राम सभा इसको मंजूरी नहीं देती है। तो एक भी जगह पे भी पैसा वापस नहीं नहीं गए किया, पैसे आज वापस भी नहीं। वापस नहीं किया। यस।
एक और क्वेश्चन है जो शायद मैं देख रही हूँ, लोग काफी कंफ्यूजिंग भी है लोगों के लिए, कि क्या हमें गवर्नमेंट अभी भी फंड्स देती है? क्या हमें गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं ये सब काम करने के लिए, या ग्राम सभा में गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं क्या? मतलब कोई ग्राम डिपेंडेंसी है क्या ग्राम सभा के कामों की गवर्नमेंट फंड्स के लिए? डिफेंसी तो इतना जल्दी हम लोग अभी सक्षम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि और हम लोग फंड सरकार से ले भी रहे हैं कि जहाँ पे हमारा विचार सरकार एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए हम चाहते थे कि भाई जो किसान भूमिहीन परिवार है उनको जानवर लेने के लिए सरकार ने मदद करनी चाहिए थी, तो सरकार नहीं कर पाई। तो फिर ग्राम सभा अपने पैसे से वो मदद कर पाई है। ऐसे तमाम सारे, जैसे स्कूल पे हमने खर्चा किया था। स्कूल में ऐसा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं चौथी पांचवी के बच्चों का, जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके क्लासेस स्कूलों में तो नहीं दी जाती है, तो उसकी क्लासेस हमको बाहर से करनी थी। तो हमने सरकार को कहा, सरकार बोले ऐसे हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ग्राम सभाओं ने अपने पैसे से किए, और सरकार की मदद हमें लगेंगी और हम ले भी रहे। जो सरकार नहीं खर्च कर पाएंगी ऐसे जगह पे ग्राम सभा अपने पैसे खर्च करवाती है। इसमें एक चीज और जोड़ूंगी कि ग्राम सभा जो है उसको 192 हेक्टेयर्स के ऊपर में राइट्स मिले हैं। ग्राम सभा में लगभग मुझे लगता है 150 के करीब में परिवार हैं जो वहाँ इस गांव में रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां भी सीएफआर रिकॉग्नाइज हुए हैं। तो वहां पर हम ये मानकर ही ना चले कि हम जंगल के ऊपर ही हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा या जंगल के ऊपर ही हमारी पूरी उपजीविका चलेगी। तो हमें अगर अपने लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करना है या हमें अपने जंगल को भी बेहतर बनाना है तो हमें और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो वो सही। हम सरकार की अलग अलग योजनाओं को कन्वर्ज करते हैं, और जो कानून में भी लिखा है कि आपको कन्वर्जेंस करना ही है, सरकार को कन्वर्जेंस करना है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस कमिटीज है जिसके हम लोग मेंबर्स हैं, रामलाल भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस कमिटीज बनी हुई है जिसका काम ही है कि अलग अलग योजनाओं को इन गांवों तक लेकर आना है। तो सरकार का पैसा हम लोग बिल्कुल ही, हमें जहां लगता है कि ये चीज के लिए हमें सरकार का पैसा चाहिए वहां हम बिल्कुल सरकार का पैसा इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जगहों पे हम सरकार का पैसा शायद ग्राम सभाओं के खाते में भी आता है, जेएफएमसी के खाते में आता है, उन चीजों को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। ओके। इस लास्ट एक दो क्वेश्चंस कुछ हैं वो हम कर लेते हैं। इज द कम्युनिटी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज? क्या समुदाय वन्य जीव को। वन्य जीव के संरक्षण के लिए भी जिम्मेदारी लेता है? और उसी के साथ दूसरा प्रश्न उनका ये भी है कि हाउ डज द कम्युनिटी मेक श्योर नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज हैपनिंग बाय कम्युनिटी मेंबर्स? मतलब जो चीज हम लोगों ने बाहर वालों के लिए जैसे ग्रेजिंग मना किया है, जंगल का कटाई मना किया है, ये हम कैसे ये करते हैं कि कैसे उसका ध्यान रखते हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो खुद ये सब चीजें ना करें? इसको हम कैसे मेक श्योर करते हैं? एक तो वन्यजीव के बारे दो सवाल है। वन्यजीव के लिए तो ग्राम सभाएं, मतलब हमारा परंपरा था एक बहुत सुंदर, उसको सुंदर भी बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो शिकार करना था वो पूरी तरह बंद हो गई है। अब हमारी जनजातियां बिल्कुल शिकार नहीं करती है, क्योंकि यहाँ तो थे ही नहीं। अब जानवर बहुत सारे आ गए, तो उनके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे कुछ इलाके को तो हम लोगों ने बिल्कुल वर्क से दूर ही रखा है। कोई काम नहीं करेंगे, कोई हलचल नहीं करेंगे। ऐसा लगभग 10 हेक्टेयर के करीब करीब कुछ क्षेत्र है जो बीच में बचा है, जहां अब तक शुरू से कोई काम नहीं किया हमने। वहां का एक पेड़ को इधर से उधर नहीं किया है, जमीन में इधर से उधर नहीं किया है। नतीजा ये हुआ कि वहां बीबट का वसात है, वहां बीबट रहता है। हमेशा लोगों को बीबट वही जगह पे दिखाई दिया है, तो लोग अपना बना के रखा है। दूसरा, हम चराते हैं खुली जगह पे, हम नहीं चराते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब जगह पे हम गांव के लोग पूरा चरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चराने के लिए हम लोगों ने एक क्षेत्र बनाया है, वही क्षेत्र में गांव के लोग चरेंगे, और वो क्षेत्र पे बाहर के लोग नहीं आके चरेंगे। और वो आके चराते हैं तो ग्राम सभा के रूल के मुताबिक उसको दंडित की जाती है। और ग्राम सभा के तरफ से भी कुछ लोग ऐसा हरकत किए थे, मुझे याद है 2024 और 23 के बीच में। तो उन लोगों को भी दंडित किया था, मतलब जिसमें नॉन ट्राइब थे, जिन्होंने जबरदस्ती कुछ इलाके में घुसकर किया था। तो मुझे याद है कि मुन्ना करके था, उसके हम लोगों ने 1,000 रुपए लिए थे ग्राम सभा में। ग्राम सभा ने गांव के व्यक्ति को भी दंडित किया, बाहर के लोगों को तो दंडित करती है। जी।
थैंक यू, थैंक यू। कुछ कुछ प्रश्न अगर रह गए होंगे, छूट गए होंगे, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। हम कोशिश करेंगे कि हम वेबिनार के बाद भी अगर कुछ प्रश्न आप लोगों के हैं तो जो शायद आप ERA के कम्युनिटी वाले ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, या मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी अगर आप कभी भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप वी यू कैन रीच आउट टू अस। And I would like to take a moment to thank all our speakers, participants, and everyone who has contributed to making this session possible. We truly appreciate your time, क्योंकि ये काफी लंबा समय ये वेबिनार चला है। And everyone who has contributed to making this session possible. We truly appreciate all the efforts Ramlal ji and Purnima ji has given into the work they have been doing. And this was a really important conversation today for us, as uh, we can see every state has been struggling with their own problems under of CFR। basically FRA को लेकर काफी सारी दिक्कतें अलग अलग स्टेट्स में भी हो रही हैं। सो ये एक महाराष्ट्र का पॉजिटिव एग्जाम्पल है। इसी मोर विलेजेस लाइक पाइवीर and we hope today's discussion offers valuable insights and helps strengthen our collective understanding and practice of ecological restoration. Thank you so much everyone for joining us today. Thank you the team, and there is a message from our speakers that all of you are welcome to Paivihir and Melghat to volunteer, to learn, and to understand the whole process. So, really, thank you so much. Thank you so much for this wonderful webinar. Thank you. Thank you. Thank you.